Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. A very warm welcome, everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you're doing well, staying healthy, staying safe. And today, for a change, not roaring, but celebrating Sushant Singh Rajput Day. Today is Sushant Day. We've been celebrating since morning. Started off with a musical special, and now, recent half hour ago, we celebrated with Kolkata Warriors. Remembering Sushant, celebrating his life, especially the orphanage kids, who look forward to such kind of events, जहाँ पर वो कुछ celebrate कर सके, लोगों को मिल सके, and then they can enjoy some good time, some good food. It was really very heartwarming to see how Kolkata Warriors did that with the orphanage kids. एंड मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे भी आई थिंक बहुत सारे वॉरियर्स अराउंड द वर्ल्ड आर डूइंग सो मेनी थिंग्स सो मेनी एक्टिविटीज फॉर सुशांत एंड लाइक आई हैव ऑलवेज सेड सिंस early times, this mass awakening, this mass movement has been the biggest, I think, global organic movement that has happened in my lifetime. At least I've seen others, I've heard about others, but I think this has been such an amazing movement. um, Even though it started off with an actor, uh, a human being killed, mercilessly killed, but now it has become a fight to get justice for that soul. Recently हमें ये भी पता लगा था कि Sushant's best buddy Fudge also passed away. और उसके लिए भी मैं तो यही कहूँगा कि I think it was the separation was maybe unbearable for Fudge, and that's why I think 2 साल 2.5 साल तो किसी तरह उसने निकाल लिए, but I think he could not survive beyond that just because of that. He was a young 7-year-old dog, so not an old dog. Okay, it was age related, but we all know how dogs or animals share a special bond with their owners. So today, as we remember Sushant, or as we pray for him, we would also love to, remember Fudge as well for being the most loyal friend for Sushant. I'm sure the family would be in a state where none of us can actually feel that pain. अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले प्रियंका दी ने कुछ photographs, video post किए हैं on Twitter, where she went to the animal shelter and spent some time with some of those dogs as well. And I know, as a matter of fact, she herself also got very much impacted after Fudge's demise as well. So it's not easy, especially जैसे उनका ट्वीट आया था कि the trident has been broken. We all know how strong, what kind of a strong bond she shared with Sushant, not just as a brother and sister, but also as someone who was spiritually and emotionally connected with Sushant. And we generally, we've spoken about it, feels like she is just a replica of Sushant. So more power, more blessings, more love to the entire family as we celebrate Sushant Day. This session, we're gonna keep it. It's not gonna be like a interview or anything. It's gonna be a very candid, very honest, direct dil se kind of thing. People who have really stood not only for Sushant, and I'll be very honest about that. They've stood for the righteous things. They've stood for what is right and what is wrong. They've spoken against the wrong things in and around our society, in our community as well. These are those people who have been here for this movement as well, be it on ground, be it digitally, be it on mainstream media. हर जगह पर इन लोगों को हमने देखा. And I would actually, after a point of time, I would invite more people to join and share their experiences, talk about Sushant, uh, share what you have learned, what you have seen throughout this journey for 2.5, almost close to 3 years now. But more importantly, with these guests that are going to be on the screen tonight, we really want to understand,
how do they see this movement? How have they, or what have they experienced in the last 2.5 years? And some of them have actually been on the front line, I would say. For example, I've seen Preeti Pandey roar every single time she gets an opportunity uh, to rip apart, Bollywood and the cabal, the druggy world, the underworld, everything. We've seen Colonel RDX on ground as well. वो एक memory है जो हर एक के दिमाग में, it has been etched in the hearts and minds of thousands and thousands of people, where he went to the ground even though he could not initially find the location. But you know Colonel being Colonel, he never gives up. He found it, he was there, he shared the experience, and it was so humbling to see. Mamta Kale, we all know how she sits on TV screen, and she talks about the things that happen. And then we have Prashant, जो शुरुआत से being there from Patna, किस तरह से not only with the family but also with all the global warriors he connected. He was the bond. He still is, and he will continue to. And then there are warriors across the world. One of the even though Girijaji, Rachna, Dubai, Yash, everybody is very special to me. They are. But another person who is very special is Kansa, who not only is from Pakistan. Imagine the global love Sushant is getting from around the world, but even from countries like Pakistan. Of course, we share a love hate kind of relationship with, with the country and with their people. But Sushant has actually, tried to diminish that kind of separation, and uh, it's really heartwarming to see people really, really connected to Sushant, even though Sushant is no more within us physically. Or Kanza ne to abhi main dekh raha tha, she posted a beautiful poem as well. So I would love her to even talk about that. But without wasting any more time, let me start with the first guest, of course. And, in due course of time, as people start connecting, we'll have them on the screen. But someone who has been on this platform multiple times, someone who is like a mentor to thousands and thousands of people, someone who has really inspired not only with what he has done in the past, but he continues to inspire by his words, his thoughts, and his actions as well. So Colonel RDX is back on the screen after a very long time. Good, Jane, sir. good to see you, Varun. Good to see Good you to see you, and welcome back. on this special day. I know we've been on the screen not only talk about Sushant but other topics as well. But today it's all about Sushant. It's all about Sushant Day, and I know I have seen you talk about him without being, someone who has not been that much affiliated to Bollywood and all that stuff. But the knowledge you've kind of have and you've gained over a period of time, you've spoken about how a poor, or a talented guy like Sushant, things were done wrong to him. But today I would love to hear from you. uh, how do you feel, and what do you feel about this movement, which I call the biggest, the longest ongoing global organic movement? And how do you see the people around the globe taking it forward? Thank you, Varun. At the outset, I will, wish for solace to that kindest soul, probably which people, still revere and reverberate with as well themselves individually and as collective, thought of humanity as well. And at the same time, I just hope that that shining soul on top continues to be a beacon for many young people and citizens across the globe who get inspired more and more and try to imbibe certain qualities from that man, which is left behind in abundance for everybody to take home and emulate and take through their lives. And I quite agree with you, and we have been saying the same thing probably, that this has been the biggest societal movement in history. And as we go on and on, I don't remember in my memory. I mean, somebody can correct us in this fora that anybody's passing away, and you are into nearly the third year, and still not only is that person alive in being,
he or she is alive on a daily routine basis in almost all conversations. So it's not that people come about to celebrate Sushant when you hear about a news clip or when you have occasions like these. They're talking about him and his life and what went wrong with it, and how justice must prevail on a daily basis. I don't even remember anything. Even if you take major disasters, natural disasters or man-made disasters or deaths of people for the last many decades, I don't see any single issue of the societal kind to be have come up so well and so long, and it's not even going from the memory. It is getting refreshed every day, and more people are joining. Black Lives Matter happened in US, where you are. That story is a passe, right? It happened in a hurry. It had political motives. So everything which has any motive, either economical, political, or anything else, has a tendency to die. Even societal issues have a large tendency to die because our memories are short lived. But somehow this particular incident and the person behind it who inspires people is something which is continuing, and I'm very happy because I saw that in the at night when I came back and I tried to tweet about his birthday. So I was trying to fix that character into that tweet, and I was thinking in my mind that the tweet will have that and one of his good photographs which we clicked in Jantar Mantar or someplace. By the time I came to the tweet and the tweet said zero more characters, I pressed the send button. so, so I was not able to put the photograph, and I didn't want to change it then, because moment you copy paste stuff, the algorithm does not reach people at all. So I left it for some time, and when I got up in the morning, people like asking me questions. I hope it is about Sushant Karnal. So I mean, let me tell you, I use the word that he's an enigma, and by the real word of it, I think, I mean, it's not about the physical presence at all now, right? It's not there. And even the connectors of his life, like you mentioned about Fudge, and how his family must be now feeling a little more alienated with Fudge also going away, but actually they should feel happy. At least he has got his Fudge with him currently. So that should be the Absolutely. way to look positively. And loyalty has got no masters, it only goes to the master. And it happens to be that this entire journey which I have seen, you have got me on this platform many a times. I have been on media very occasionally, because that's not my forte for which TV channels call me otherwise. But I have brought up this issue in many other cases, because if you remember, when we went to a Bollywood thing, I think there was a movie called, I mean, some Lal Singh, some movie like that, some Lal Singh, and Fantastic. that movie they called me to discuss the military aspect, and I said, you see, it all started from Sushant. So you lost a lot of respect since then. And typically I got a call also that day to say, why did you speak about Sushant? I said, that's the beginning. If you guys do not know where your nemesis has started, it is not standing with your own comrade, own teammate, and own actor who was part of your team, right? And it counts. Exactly. You see any Fauji, so anybody, and no matter his rank, it's not that a general dies and I pay a greater obeisance to him. If you follow my Twitter handle, I only say glory to the brave, one line in Jai Hind, because I don't want to differentiate. I don't want to differentiate of a sacrifice of a sipai, or a young officer, or any buddy in a higher stature. So that's the way somebody should be able to maintain that connect, and that is where I believe personally. I mean, nothing against anybody, but Bollywood has got a lot of things to introspect. And today they are running around, even for releases of movies they are creating a lot of charades, a lot of sops, a lot of controversies leading to the movies, to just make sure somehow it ticks the right button in the box office. I mean, I'm telling you, I've seen no movies for many decades, and I confess that very candidly. I don't see any movies unless I'm forced. And that trail of these movies who are a success in the last 2 years are the movies whose creators have not been silent and more controversial about Sushant. That is one part of it, and that's a huge part. And they have made sensible movies which depict country and issues. So it is very, very clear, as far as the mandate of the people is concerned, any fiction movie, frivolous movie, but with characters who have not supported this man, and especially who have antagonized the cause, and induced words like suicide, and said certain things like that initially, I don't think so. Those people will succeed much. They can route their movie through Hawala routes, not get their name, get somebody else's name as producer, and these people will do all that. That's part of the business they're doing, right?
but they will never get the acknowledgement as the person they were. So it is very, very important that whatever is your inner self of conviction is displayed in your actions. And I keep saying things about, you'll have to have a very sound, character, which gets you a lot of conviction, and the conviction gets you the will to take actions. And these three words should not go from any individual's life. It doesn't matter. You could be the best, actor in Hollywood or Bollywood or Tollywood or whatever woods there are, but if you lack these three, and if you sacrifice or compromise, I will not say sacrifice, if you compromise on your character and your conviction and will, obviously the people will not support you. It is not, dependent on your largesse which you offer, or the money you have, or the fame you have. It is more that what did you stand up for, or you didn't stand up for. And it's very important. It's very important, because I got a lot of issues with me, especially even with media, no names, but many channels. Why are you tweeting about, Sushant? What do you know about Bollywood? What do you know about, why are you going on shows? All this happens. Yep. But I say it doesn't matter. I'm tweeting on a 140 character device on hundreds of issues. You're not telling me not to comment on 15 more issues, right? But why are you talking about this? You're Correct. talking about this because between your channels, you got some kind of a thing going, that who should cover what and not cover what, and somebody wants to take a lead, or a backstage position there. That's not my concern. Because frankly, a person like me who doesn't even see a movie, I mean, I didn't even know Sushant till Sushant happened. Quite frankly, I didn't know. And I remember still that day, and I was seeing, I think, Republic Channel that day, and I saw this, being an issue. So I went and searched for this name, and then I went to some images, some short videos, and I just scrolled through some videos just to see that person. And I've said this earlier as well, I think, long time back. And when I saw that person, I just tweeted, no, not tweeted, WhatsApp to Arnab. I said, he doesn't look like a person who will commit suicide. There's something fishy. And that was one day. And then there was a whole spate, and you saw how different media reacted in different points of time, and what happened to that Republic channel, and how things came up. And there are names you have taken. I think that lady also suffered a lot at the hands of Mumbai police, and everybody else that time was speaking out. And my entire heart goes to these people, because they are the people at their prime age. I mean, imagine today a person at 20, 25, 30, 35 coming out for such social causes in a state which is absolutely against your cause, and they are putting people behind bars, and you're still standing up. You stand a fair chance of being behind the bars yourself. Yep. And imagine those lives, professionally, otherwise, are likely to be ruined if those people who are controlling affairs continue for 5, 7, 10 years. Imagine if that government continued 15 more years, Yep. and all those people who are behind the bars, they would have never come out in time, or in terms of the stature they want to come out with. So Exactly. it's quite a different thing for a mafia, or a cartel person to fight an election and win in India. It's quite a different person for a citizen who is by character a good citizen, to stand up for a cause which he or she believes is right. And it is not maligning anybody, it's just talking about a cause, and still being punished for it. Imagine the kind of castigation you get in terms of the legal domain. And imagine, no matter what good you are doing, when you come out after 15 years from a jail, you still were in the jail for 15 years, right? It Yeah. can happen to anybody. It can happen to somebody, who was in Mumbai. It can happen to even me today. It can happen to anybody. It can just, take away your future from you. Then why do people stand for these causes? Because if you don't stand for these causes, which are human causes, you're not a human being. I mean, that's my personal belief. You have to stand up and get counted. If there Correct. is a situation to take an answer in yes or no, I should be able to take a yes or no. If I don't know the subject, I should get advice and then take a consider yes or no. But I can't be a human being with a brain here who says, oh no, I don't know what's happening. There can be nobody. If you tomorrow tell somebody about Sushant Singh in the language he or she understands for 5 minutes, and ask for opinion, if that person does not have an opinion, then I can say that person doesn't have character. So it is as simple as that. So it's just one issue I'm saying, because that's the issue we are talking about today. It can be Correct. any issue. And imagine this one person, you have seen last 1.5 years, even the tone and tenor of Twitter has changed. You talk about Indo-Israel relations as Rohit or somebody else today on that media,
there'll be 10 people replying on it, ki justice for SSR, and they'll be tagging 15 more people from the government and the police and otherwise. That means this issue is just way beyond anybody to fathom. I don't know if Twitter can give us the count or a graph on even how much this is talked about globally. And my thing is that whenever I open Twitter, the fourth or fifth tweet, whenever I'm seeing something, connects to this particular man, this particular case, and this particular issue which people are feeling very much involved in. So if Exactly. people are feeling involved in, how can you detach that issue from mainstream? How can you detach that issue from the legal system of giving it a closure? How can you take it Exactly. away Well by put. playing petty politics over it? And how can Yeah. fight amongst each other to take credit or not take credit on media channels? And finally, when there are some people who are building the cause, keeping it maintained, the momentum is strong, people like Varun Kapoor and others, how do you go on social media and start castigating them? That's my other concern, right? So you are good for nothing, but Yeah. you will do anything else to get a movement down. And a lot of people in this movement, very distinguished people who came and spoke a language A, spoke the converse after a few months. And I Absolutely. mean, I can use a very mild word called a sellout, but that's not the word, right? The word is that what kind of heart you are carrying, what kind of a soul you are, that you have compromised a humane issue for anything else, or for whatever you got threat, you got money, you got a bungalow, you got a car, you got whatever for not doing it. You are a sellout. And Exactly. sellout is milder than actually introspecting yourself and seeing what kind of a devil you have become, being on earth. So there's no question of you even choosing hell or heaven. You have to go towards the hell only. And you should plan like that, because people who don't support such causes, I mean, you can go by any They're not shastra, human. any religion, any faith. I Correct. mean, you have killed your soul while sitting on this planet. I mean, what good you are? I mean, I think this man inspires many souls, and happy souls, some with filled with angst today, who want a closure. And we all should be together. And this movement has grown from a few hundreds to thousands to lakhs to millions to more. And this is only growing. And I keep telling you, Varun, that this is the good foundation for the next social cause to happen anywhere, at least in India, if not globally. And that is the way we Absolutely. should look at it, because it has got like-minded people together who think about these causes and who think about the pain, the agony the family feels. They think about how the systems have failed people. They think about how even millions get together. They are still, crying for a closure and justice in the case. So I think the days ahead should only be inspirational. And on today's date, I can only wish his family all the strength they need to carry forward in their life. The sisters have been super stupendous. They have helped this movement. They have stood every time, and it takes a lot of courage. It's not easy, Varun. While they may come to Jantar Mantar or any other Absolutely. place and on your channel, but it's not easy. It's not easy because for that time, and I was there when the last time I met them, dripping tears, trying to hide, camera glare, everything happens. It's all human. And we should treat their loss as our loss and be with them for the longest time possible. And as a cause, I think this is the best cause we have in a long, long time to shape the mentality of our youth and Gen Next, and we should take it as that. Without much ado, I think more guests will come. So let's take it Absolutely. from No, here. this Let's hear was, some views beyond. yes, this And was so well put, Colonel. I'm so happy. Some few things that you mentioned, and I'm going to introduce the next guest based on those things. One, you mentioned sellout. There are people who we have seen taken those U-turns, but then there are people like Preeti Pandey, Mamta Kale, Kale, yeah. who have really, really stood the ground. Attacks, abuses, trolling, even on mainstream ऐसी language in लोगों ने सुनी है, No, language is for not the issue only, Varun. People should realize in India, population and traffic we have, to bum off anybody is not too difficult. When the cabal gets after you, that's the method. You see cases against prominent politicians yep. with 100 plus witnesses. Nobody has survived till the end of the last hearing of the Supreme Court, and the case cannot be solved because the witnesses are not there no more. So Correct. just imagine, and these are people who are fighting. You imagine the threat the witnesses would have had.
That is the reason, when we say that people who were prime witnesses, and I'm always a believer, I still think that some of them should at some point of time turn an approver. One of them turned approver, the one in that mortuary. He talked about it on the screen a Yep, few weeks yep, back. Kumar. And I'm counting on these approvers. There should be a day when all those people who were closest and who know the truth, somebody who was there when it happened, there were many people there. He was not alone. There were not only two people there, right? So it Yep. will come out, and I'm just hoping and banking that these approvers come away and spell out what happened, and justice prevails. And kudos to the two names you took and many more Many who have more. risked, I Exactly. will not say their word and their profession, but their lives as well, because speaking out in public in Mumbai at that point of time was not easy. Absolutely. And with that, let me just get her on the screen, the Sherni who has always roared for Sushant, who has never, at least, in a joking way, I'm going to say, at least till now, has not taken a U turn. And I know for a fact she will never, क्योंकि the way she has spoken for Sushant, sometimes we meet some people, like occasionally we meet people like Preeti Pandey, जो बिना किसी को मिले, बिना किसी को जाने हुए, उसके लिए इस तरह से लड़ना, इस तरह से बात करना, और इस तरह से ऐसे-ऐसे लोगों को, irrespective of their age, their status, their political, whatever stand they had, she has ripped them apart on any and every single platform that she has been. And I'm really proud that, we share such a bond on this platform as well, that she brings those facts, those elements to our platform as well, and shares it with all the warriors. And so, really happy to see you, Preeti ji, once again, and welcome back to this platform. थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद वरुण Jai जी। Hind, Jai थैंक यू। Hind, Jai Hind. हेलो साहब, जय हिंद। आपको देख के Jai Hind, जोश Jai. वैसे ही आ जाता है। So, Pata nahi, welcome I on think it's Sushante. mutual. When I see all of you, I also get a lot of I will not say josh, but a lot of motivation to pursue things which one does. Thank you. Yep. So welcome on Sushante, Preeti ji, and saw all your posts have been big. Of course, we all are your fans, no doubt about it. But more than fans, as a warrior, and we also consider you as one of our very strong Sushant Singh Rajput warrior, who has never shied away from talking about Sushant, चाहे वो कोई भी हो सामने. You have stood your ground. You will continue to do that. And आज, after almost close to 3 years, how do you feel? आपसे भी यही शुरू करूंगा मैं. इस movement, the biggest, the longest going organic movement के बारे में आप भी जरूर शेयर करें. Your views, your thoughts. वरुण, सबसे पहले तो सारे एसएसआरियंस को अराउंड द ग्लोब, बिहार के किसी गांव से लेके और विश्व के किसी भी कंट्री तक, सारे एसएसआरियंस को जो पिछले 2.5 साल से बिना थके, बिना डिमोटिवेट हुए लगातार इस रेवोल्यूशन को चला रहे, उन सबको हैप्पी बर्थडे सुशांत। हमने यहाँ पे फाउंडेशन में भी सेलिब्रेट किया और बच्चों के साथ बहुत पूरा दिन हमने मस्ती की। आज हमने फिल्म दिखाई सुशांत की I know, छिछोरे, मैं भी देख बिकॉज रहा था आपका. हाँ, वो फिल्म ऐसी थी कि मैं चाहती थी कि बच्चे देखें कि आप पैदा तो इस परिस्थिति में हुए, जरूरी नहीं कि आपका अंत भी ऐसे हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। तो जरूरी थी वो फिल्म दिखाना, और सुशांत की फिल्म थी तो मैं जरूर चाहती थी वो देखी। सबसे आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं सोशल मीडिया पे, जो मेरी आदत है, किसी के कपड़े नहीं फाड़ूंगी, किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, किसी की वाट नहीं लगाऊंगी, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ सुशांत की अच्छी चीजों को सबको बताऊंगी, और हम अच्छी चीजें लिखेंगे। पूरे विश्व को जानना चाहिए, और वैसे जानते हैं, लेकिन और ज्यादा लोग जाने, जो जो इस मूवमेंट का हिस्सा है वो भी, जो इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं है, जो इंडियंस हैं वो भी, जो जो बाहर रह रहे हैं वो भी है, जो हमारे भारत के नहीं है, भारतीय मूल के नहीं है, जो विदेशी हैं वो भी, कि सुशांत सिंह राजपूत है कौन भाई, जिसका इतना हल्ला है कि 2.5 साल हो गया, एक नाम जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। क्योंकि हम लोगों ने देखा, चाहे बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो वरुण जी, या कोई और सुपरस्टार कभी रहा हो, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ये पहली बार कोई चीज हुई थी ऐसी, इसके पहले भी हुआ है, बहुत दबा दिया गया या दब गया या कोई सामने नहीं आया, कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा हुआ है। लेकिन क्यों ऐसा है कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे ही विश्व भर में ये सारा कुछ चल रहा है? तो वैसे तो आपके शो की वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ वरुण जी, जैसे नाडिया जी, राइट, प्रतिमा जी,
और बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिनका नाम अभी नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में रह रहे हैं जो सुशांत के लिए इतना सुशांत के फैन है, या सुशांत को अपना दोस्त मानते हैं, भाई मानते हैं, परिवार का हिस्सा मानते हैं। सुशांत के लिए ही क्यों? तो मैंने कल ट्विटर पे एक चीज लिखी थी कि 21 जनवरी को कौन सा ऐसा भारत माँ का सपूत पैदा हुआ था जिसका जिसका जन्म हुआ लेकिन जिसका अंत नहीं हुआ। कुछ लोगों को लोग सोसाइटी में भारत माता एक वरदान के रूप में इस देश में, इस विश्व में शायद छोड़ जाते हैं। क्यों सर? तो मुझे लगता है कि सुशांत वॉज वन ऑफ देम, कि आज 2.5 साल हो गया और सुशांत का एक ऐसा नाम है जो जन्म तो है, डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पे भी जो इस देश की सत्ता पे लोग बैठे हैं, 2-4 बड़े नाम को छोड़ दीजिए तो जो इस देश के राजा रहे हैं कभी, या कभी फॉर एग्जाम्पल कभी पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी लोग गए, बहुत सारे कम लोगों को याद किया जाता है। कारण क्या है? कारण ये बहुत सारे कारण है। सुशांत में तो मैं ये सोचती हूँ कि सुशांत एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से जो ये थम नहीं रहा, जो लव जो थम नहीं रही है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि वो दिल का इतना अच्छा व्यक्ति था कि सुशांत की आप वीडियोस देखो, सुशांत की आप फोटोज देखो, आप सुशांत, मैं अभी पीछे कुछ लोग मुझे बहुत गालियां दे रहे थे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, तो मैं ज्यादा जवाब नहीं देती क्योंकि जितनी एनर्जी उनपे लगाऊंगी उससे ज्यादा एनर्जी मैं डिबेट में फिर लगाऊंगी। ये जो बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, मुझे उनका बॉयकॉट चलाते रहना है, इसलिए हमें बोलते रहना है, इसलिए लड़ाई में मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूंगी, एनर्जी उतनी ही है। मैं अभी कुछ दिन पहले सुशांत के घर गई थी, वरुण जी, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैंने उसकी फोटो वीडियो कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाला, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि 2.5 साल से मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिनको पहले से नहीं जानती थी। जैसा कर्नल साहब ने कहा कि सुशांत के रहते रहते, सच बताऊं, मैं केदारनाथ के अलावा और 1-2 फिल्में सुशांत की और देख लें, कभी सुशांत की बहुत फिल्मों का बहुत क्रेज मुझे नहीं है, तो मैं फिल्में भी बहुत नहीं देखती थी, सुशांत की भी बहुत कम देखी है। जिस दिन ये न्यूज हमें आई, हम अपने मन में यही सोच रहे थे, मुझे याद है मैं अपनी सिस्टर से डिस्कस कर रही थी कि बताओ, इतनी बड़ी पोजीशन पे था, इतना पैसा रुपया कमाता था, हम कैसे सोचते हैं ना उस समय, क्या ऐसी कमी थी कि डिप्रेशन का शिकार हो गया। जब ये स्टोरी 1 हफ्ते बाद बढ़ी, 10 दिन बाद बढ़ी, पर डे एक नई चीज आती रही, फिर ये फाइनल हुआ, फिर ये मन में आया कि नहीं नहीं नहीं, ये एक नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल केस बॉलीवुड में पीछे जैसे रहा है वो है ही नहीं, है ही नहीं। आज सुशांत की बार बार एक फोटो आती है वरुण, जिसमें वो अपने फ्लैट में शायद अपनी किताबों को ठीक कर रहे हैं जमीन पे रख के। राइट। बहुत सारे लोगों ने सुशांत के उस फोटो को देख के मुझे मैसेज किया है कि मैम, जिस तरह की ये किताबें पढ़ते थे ना सुशांत सिंह राजपूत, यकीन मानिए बॉलीवुड में 1% भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिन किताबों का मतलब भी जानते थे। जो उनकी विश लिस्ट है, जो 50 विश लिस्ट है, उसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं अपनी सिस्टर के लिए करना चाहता हूँ, पापा के लिए करना चाहता हूँ, खानदान परिवार के लिए करना चाहता हूँ। उसके अलावा जो उनकी विश लिस्ट है विश्व, समाज और राष्ट्र, इंटरनेशनल लेवल पे भी, उसकी तो कल्पना ही बॉलीवुड के चर्चे नहीं कर सकते, यकीन मानिए इम्पॉसिबल है। सुशांत की विश लिस्ट को डिकोड भी नहीं कर सकते बॉलीवुड के चर्ची। 50 छोड़ दीजिए, 5 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम अपना घर गाड़ी बंगला बनाने के अलावा, अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोलने के अलावा, अपने फर्जी एनजीओ चलाने के अलावा, हवाला से पैसे लाने के अलावा, अंडरवर्ल्ड का पैसा बॉलीवुड में लगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये थी कि सुशांत सबकी आंखों का किरकिरी तो क्यों बना, ये 100% यही सारी चीजें। मैं अभी जब पटना गई थी तो मैं 2.5 साल से सोच रही थी कि मैं सुशांत के फादर से मिलूंगी, और मैं गई और मैं उनसे मिली। सुशांत के फादर वहां पे थे। यकीन मानिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने वरुण आपको मैसेज भी किया था। लेकिन जब मैं सुशांत की गली में गई, जहां सुशांत का घर बस 10 कदम से दूर था, वहां मेरे को सिंकिंग फीलिंग आने लगी। मतलब मैं जितनी एक्साइटेड थी कि मैं सुशांत के पापा से मिलूंगी, मैं सुशांत के घर जाऊंगी, मैं देखूंगी, समझूंगी, मैं वहां जाने पे मेरे को 5 मिनट पहले मेरे को घबराहट सी होने लगी। मतलब वो सारी चीजें, एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी। मतलब मैं तो कहूंगी कि जो आए बिहार जाए और सुशांत के फादर से जरूर मिले। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं जितनी देर बैठूंगी, मैं उनके पिता से एक बार भी इस केस के बारे में, इनके बारे में, सुशांत के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। आई विल टॉक समथिंग एल्स। तो हम जितने देर बैठे, अंकल आए, मिले, मैंने पैर वैर छुआ, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे खाना पूछा, पानी पूछा, बहुत देर तक बैठे रहे। उनके घर में एक आम का पेड़ है शायद, जो सुशांत के जन्म के इर्द गिर्द का पेड़ है वो। तो हम ऐसी बातें करने लगे। हाँ, तो मैंने कहा अंकल मुझे आम बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा बेटा गर्मी की छुट्टियों में आना तो फिर आम मिलेगा, मेरी बेटियां भी आती। मतलब हंसी मजाक इस तरह की बातें हम करने लगे। तो मुझे ये लगा कि हम
अगर हम आज यू टर्न ले लेते हैं ना, बैकफुट हो जाते हैं इस केस पे, तो ये सिर्फ मेरी अपनी एज ए एक्टिविस्ट के तौर पे मेरे प्रोफेशन की, या मानव के तौर पे, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि ना हमारा कोई कैरेक्टर नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, हमारा कोई कैरेक्टर नहीं होगा अगर हम यू टर्न लें। लेकिन सबसे बड़ी बात, हम कहीं ना कहीं उस 70 साल के वृद्ध पिता को भी धोखा दे रहे हैं, जिनके नाम पे हम टीवी डिबेट तो करते थे, हम सब लोगों ने। हमने शुरू में कभी नहीं सोचा था कि जैसे बहुत सारे मुद्दे आते हैं वरुण, तो हम डिबेट तो अनुच्छेद 370 पे भी करते हैं, राम मंदिर पे भी करते हैं, आतंकवादियों पे, पीएफआई पे भी करते हैं, तो ये डिबेट का मुद्दा होता है। सुशांत, शुरू में तो शायद डिबेट का 2 दिन 3 दिन मुद्दा रहा हो, लेकिन यकीन मानो कब हमारे लिए या ममता जी के लिए, हमारे बहुत, आपके लिए, कर्नल साहब के लिए, बहुत सारे एसएसआरियंस के लिए वो हमारी जिंदगी का हिस्सा कब बन गया, मुझे यही नहीं पता चला। माय Seriously. मदर वॉज क्राइंग टुडे इन द मॉर्निंग, जब मैं सुशांत के वो ट्विटर पे सब दिखा रही थी, तो मम्मी ने मेरे ऐसे कहा कि केस सॉल्व होगा ना। मैं कहा मम्मी केस भी सॉल्व होगा, और उससे बड़ी बात यह है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब जीत कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने ऊपर से ऐसा तमाशा कराया है महादेव के नाम से, कि जितने नीचे हैं ये, चाहे वो पॉलिटिशियन हो जो इसमें इन्वॉल्व रहे हो, जिनका नाम आता रहा हो, चाहे ऐसे मीडिया हाउसेज रहे हो, चाहे ऐसे एक्टिविस्ट रहे हो, चाहे ऐसे एनजीओ के लोग रहे हो, चाहे कोई भी ऐसा रहा, आज सबकी दुकानें बंद है वरुण। तो कहीं ना कहीं सुशांत, आज देखो ना, कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है, आप जानते हैं कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो विश्व भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है? नोबडी, नोबडी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका साल भर ट्विटर ट्रेंड करता है जिसके नाम पे? कोई नहीं। आप किसी भी बड़े व्यक्ति का नाम उठा लीजिए, ये डे, वो डे, फलाना डे, आज इनके नाम पे बंद है तो इनके नाम पे बंद है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। सिर्फ वो सुशांत ही है जो वो सारे बैरियर, सारे बेंचमार्क तोड़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुशांत का जो सोल था ना, वो सबको कनेक्ट कर रहा है वरुण। बिल्कुल, मतलब चाहे वो मीडिया हाउसेज हो, चाहे वो लोग हो, चाहे मैं हूं, आप हो, कर्नल साहब हो, सबको जोड़ रहा है, उसके पीछे सिर्फ सुशांत का पायस सोल है। आप बिल्कुल सही कहा। और आपने जो यू टर्न की बात की, मैं तो कहा ही है, मैं तो मजाक में बात कर रहा था, वी नो यू विल नेवर टेक दैट यू टर्न। और जिस तरह से आप किसी भी प्लेटफॉर्म, और अच्छा कि आपने आज किसी को लिटरली कपड़े नहीं फाड़े, ना सोशल मीडिया पे, ना कहीं और, बिकॉज एक आधा दिन उनको भी ब्रेक मिलना चाहिए, उनको भी थोड़ा सोचने का मौका मिलना चाहिए। दे शुड ऑल्सो कम अप विद न्यू स्ट्रैटेजीज कि किस तरह से हम प्रीति पांडे को टैकल करें। हालांकि कुछ भी कर ले, दे कैन नेवर टैकल यू। नाउ on the other side, on the human side, आपने अभी जो बात की, जैसे आप उसके फादर से मिले, you've met the sisters, for people like SSR warriors around the world, आपने उनके साथ भी वो कनेक्शन बनाए हैं, and they look up to you, they look up to Colonel, they look up to ममता काले, कि किस तरह से आप लोग हमें you keep this thing going forward. बट ये जो मीडिया हाउसेज है, और मैं देख रहा था चैट में कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे थे, और स्पेसिफिकली आपके लिए भी आ रहे थे, कि ये मीडिया हाउसेज, ये चैनल्स हैं, और आई एम श्योर द इंटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रिपब्लिक, बट आई विल जस्ट जनरलाइज इट। मैं सिर्फ रिपब्लिक की क्यों डालूं इस पोजीशन में, बट टू क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, और मे बी a perspective from both of you. We've seen what Arnab has gone through, what Republic has gone through, but overall अगर हम देखें, these media houses, these channels, they somehow stopped. ये काफी कम हो गया। इनको जो भी चाहे डायरेक्शन मिली, चाहे थ्रेट मिला, जैसे कर्नल ने पहले बोला, इट कुड बी एनी रीजन, बट they've kind of थोड़ा कम हो गया। हमारे लिए एज एसएसआर वॉरियर्स, वी हैव वेरी लिमिटेड रीच, वेरी लिमिटेड स्कोप कि हम कहाँ तक इस बात को लेके जाएं। बट ये मीडिया हाउसेस, चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया, देव स्टॉप। उसके बारे में क्या कर सकते हैं कि किस तरह से ये अवेयरनेस हम कंटिन्यू करें व्हेन वी आर नॉट गेटिंग द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया भी? वरुण जी, मैं भी कुछ दिन पहले बॉम्बे गई थी, बिहार के बाद मैं मुंबई गई, तो समहाउ हम एक इवेंट में मिले, एंड अर्नब वाज देयर, और मैं भी उसी इवेंट का हिस्सा थी। अर्नब भी आए थे वहां पे 10 मिनट के लिए। ही डिडंट न्यू कि आई एम इन मुंबई। और अर्नब के वो जेल वाले प्रकरण के बाद फेस टू फेस कभी डिबेट्स में मिलना भी नहीं होता, क्योंकि वो शायद बॉम्बे से बैठते हैं, और कई बार बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो स्टूडियो में यहाँ पे बैठते हैं, और हम कई बार कोविड में घर से कर रहे होते हैं डिबेट, और कई बार हम स्टूडियो में करते हैं। मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे अर्नब ने अपने ऑफिस में मुझे टाइम दिया, 2 घंटे, संडे का दिन था, वो ऑफिस आए, उन्होंने मुझे ऑफिस बुलवाया, मैं 2 घंटे वहां पे थी। बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने कहीं बताई, जो मुझे एक चीज तो जरूर फील हो गया कि हम जितने वॉरियर्स हैं, अर्नब भी उसका हिस्सा है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि एक व्यक्ति जिसका जिसका पूरा चैनल
बंद कराने के लिए। उनकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि सुशांत का केस क्यों पुट अप किया, सुशांत के केस को क्यों उजागर कर रहे हो, उस समय के सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। तो जिस तरह से अर्नब ने लड़ाई लड़ी, नो डाउट किसी मीडिया हाउस ने नहीं लड़ी। बहुत सारे वैसे यूट्यूब चैनल्स जो आज भी मेरे इंटरव्यू लेके जाते हैं या ममता जी का इंटरव्यू ले जाते हैं, दो चार यूट्यूब चैनल्स हैं जो बेचारे बड़ी धमकियों के बाद भी और बड़ी गालियों के बाद भी उसको कंटिन्यू रख पा रहे हैं। लेकिन मीडिया हाउसेस के साथ मुझे लगता है बहुत सारे मीडिया हाउस ने तो बीच में ही वरुण इस केस पे बोलना ही बंद कर दिया था, और सो कॉल्ड बहुत बड़े मीडिया हाउसेस तो चर्चियों को बुला बुला के उनके इंटरव्यूज करने लगे थे, राइट। तो अर्नब ने जहां तक वो लड़ सकते थे वहां तक वो लड़े, और आज भी मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं डिबेट कर रहा होता और एक छोटी सी भी चीज सामने आती है, जैसे कूपर हॉस्पिटल, वो बहुत बड़ी बात थी जो सामने अभी आई थी, जो बार बार ये बात कही जा रही थी कि सुशांत के पैर में जो चोट लगी थी या फ्रैक्चर था या चेहरे पे जो चोट के निशान थे, तो कोई आदमी खुद को मार के तो खुद को हैंग नहीं करेगा ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो खुद को घूंसे मार के अपना चेहरा खराब करके और पैर तोड़ के शरीर में मार्क्स लेके फिर कौन हैंग करता है, खुद से तो नहीं होगा ये 100%। उसको भी रिपब्लिक ने कोशिश की दिखाने की। अब मीडिया हाउसेस कितना कर सकती हैं कितना नहीं कर सकती मैं तो नहीं जानती, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, अच्छा सरकार में भी जुड़े लोग और सरकार के विपक्ष के लोग, उनके भी अपने अपने रोल हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग मतलब मैं हूं, आप हैं, कर्नल साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे बहुत सारे ऐसे सारियंस जो किसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है या जिनके पीछे कोई बैनर नहीं है, हम अपना काम खुद करते हैं, अपनी रोजी रोटी खुद कमाते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम उस बारे में बोलेंगे, हमें जो नहीं अच्छा लगता हम उस बारे में नहीं बोलेंगे। ना हम किसी से पैसे खा के बैठे हैं, ना हम किसी हाउस का हिस्सा हैं, ना हमारे यहाँ कोई 2 करोड़ रुपए लाके डोनेशन दे रहा है, और ना कोई हमको चर्सी बुला के किसी चर्सी का इंटरव्यू लेना है, और ना हमें अपनी दुकान चलानी है। तो जो प्राइवेट लोग हैं, जो खुद लोग हैं, जो एसएसआरियंस, उनके लिए तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, आप जिस तरह से 2.5 साल से जिस एनर्जी के साथ ये मूवमेंट चलाते आए, मजबूर कर दीजिए सरकार में बैठे लोगों को, मीडिया हाउसेस को, सबको मजबूर कर दीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत का केस कभी हल्का ही ना पड़े। बंद करने की तो देखो इनकी हैसियत ही नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, इनकी हैसियत ही नहीं है कि ये केस बंद कर देंगे किसी भी तरीके से नहीं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ना वरुण, वो चलते रहना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये मास मूवमेंट है। ये मेरा आपका या सुशांत के परिवार का या उनकी चारों बहनों या उनके पिता का मूवमेंट नहीं रहा। अब वो मूवमेंट बहुत आगे निकल चुका है, अब वो नेशनल इंटरनेशनल आइकॉन है। अब सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बॉलीवुड का, बिहार का, भारत का हिस्सा नहीं है, अब तो वो इंटरनेशनल मूवमेंट है। इसमें जम के बोलो, जम के सवाल करो, रोज टैग करो, अभद्रता नहीं करते हुए, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हुए, अपनी लैंग्वेज को, अपनी चीजों को, अपनी मर्यादा। हम भी डिबेट में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग हमें उल्टा सीधा बोल जाते हैं, लेकिन उसका जवाब भी मर्यादा में देना होता है। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग सुशांत के केस में मुझे याद है जो बैठते थे और सुशांत की तरफ से लड़ते थे, अभी अचानक से बॉलीवुड के उन लोगों ने, बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, मॉडल, अभी अचानक से सब हमारे ही खिलाफ बोलने लगे हैं। जो फिल्म रिलीज हो रही है 2-4 दिन बाद, जिसका ट्रेलर और टीजर लॉन्च करने की हैसियत भारत में नहीं थी, तो चले दुबई। गए अपने, हाँ वहां चले गए। अभी एक न्यूज देख रही थी कि अभी एक शो आता है, कॉमेडी शो, आई विल नॉट नेम इट, तो भाई साहब ने कहा है कि अब मैं सीधे सिनेमा हॉल में आऊंगा, अब मैं अच्छा। कहीं पे भी जाके अपने शो का प्रमोशन नहीं करूंगा। भाई साहब आप क्या ही प्रमोशन करेंगे, यू आर अ फ्लॉप शो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, आप ऐसे ही मतलब एक स्टार और बादशाह बन के नहीं, यू हैव टू स्टॉप। और जितने लोग पीछे कुछ दिनों पहले कोलकाता में जाके कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, मैं तो कह रही हूँ सबका ट्विटर चेक कर लो आज, लेट्स स्टे पॉजिटिव। किसने सुशांत का बर्थडे विश किया है, किसने नहीं किया है? बॉलीवुड के जितने लोग हैं आज देखो, आज जितने बड़े स्टार्स हैं जिनकी फिल्में आ रही हैं और रिलीज होने वाली हैं, सबका ट्विटर देखिए, और जिसने नहीं किया उसको टैग कर करके लिखिए कि आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, 2 दिन पहले तो ज्ञान दे रहे थे कलकत्ता में जाके। तो पॉजिटिव में क्या आप अपने को स्टार का जन्मदिन भी विश नहीं करते? 2 कौड़ी के स्टार्स को तो आप आपस में, जिसको फोन पे विश कर चुके होते हैं ना, उसको भी ट्विटर पे दिखाने के लिए विश करते हैं, यू आर माई बडी, फलाना ढकाना। ये अरे सुशांत से इतनी नफरत, सुशांत के नाम से इतनी नफरत, एक आई नो। सुशांत सिंह राजपूत ने इनके बीच में बिल्कुल भय बना रखा, और बहुत जरूरी है कि सुशांत का भय इनके बीच में रहे।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिफोर आई लेट कर्नल आंसर दैट, एक और हमारे साथ जुड़े हैं जो शुरुआत से इस मूवमेंट में हैज प्लेड अ वेरी की रोल. He has seen almost everything, चाहे वो इंटरव्यूज हो रिपब्लिक पे, चाहे वो एनालिसिस हो, इन्वेस्टिगेशन तक कर दिया, चीज़ों को बाहर लेके आए एंड ब्रॉट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स आउट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस. समवन हु स्पीक्स लेस, बट जब बोलते हैं तो फिर पता लगता है कि हाँ भाई कोई बोल रहा है एंड फैक्ट के साथ बोल रहा है. सो लेट मी जस्ट टेक Prashant also on the screen. Hello, Prashant, and welcome on Sushant Day. नमस्ते सर. नमस्ते सर, नमस्ते दी. Welcome, welcome, Prashant. दोनों को प्रणाम. जी, खूब खुश आज रहो और खूब तरक्की अच्छा लगा करो. आप सबको देख. God bless you. जी, शुक्रिया. अच्छा लगा आज सब लोग सुशांत डे के बहाने ऐसे बैठे हैं, ऐसे मिले हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हमारा एक बहुत खास, हमारा अपना, मतलब हर किसी का एक अपना ऐसा दिन हो जो हम अपने भी बर्थडे पे नहीं कर पाते, वो आज सब ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं. एक भाई के लिए सब अपने, कोई बहन है, कोई भाई है, सब ऐसे ऐसे अलग अलग जगह से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ये देश का एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि देश के जितने भी हित चाहने वाले लोग हैं वो इस तरफ ही हैं, मतलब सुशांत के तरफ ही हैं. और देश का जो अहित चाहने वाले लोग हैं वो बॉलीवुड और दाऊद के गैंग के सारे लोग हैं. तो प्रीति दी भी जिस तरह से धुलाई कर रही थी वो भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा. तो मैं तो और सुनना चाह रहा था कि मैं पहले और देखूं, सुनूं. जी बिल्कुल. और आपके पास भी मैं आऊंगा प्रशांत. पहले आई वुड लव टू गेट कर्नल का भी वो पर्सपेक्टिव अराउंड मीडिया के, with जी whatever support we have, Colonel, I mean the same question. That a couple of things Yeah, only. please. First is that media, the news sells, right? So there's always a problem how to have a continuation of any issue without any development coming in. So like was brought PT as well, that when that mortuary person came as approver, so it came back again. So I don't think so. From a few prominent channels like Republic, it is out of their mind. It's always continuing. I'm quite sure at the back end they're also digging into a lot of things and trying to make a case, because they have also invested directly into this case by being the first movers to bring this case upfront. However, the other part of the media is a little ugly, and I'm not talking about Republic. I mean, maybe it affects others today more. Is that media has got a price today? Unfortunately, media houses, because when you run a media house as a business, for say anybody on the screen today to run a YouTube channel, you can run it yourself, right? You don't need, you are running your StreamYard. You have a small investment in your studio. You can do it. But to run a media house as a business, it's a business actually. So there are certain media houses I know where out of 10, 9 of them don't like a particular anchor, but he or she is there because he or she gets a lot of promotional value into the system, gets a few crores every year for that media house. Who gives it the crores on his name is something, you can connect all the dots. Preeti mentioned a few in one line earlier. That's the line. And that line in Bollywood works right offshore, China, Middle East, Pakistan, coming down to our country finally. That money is very powerful, Varun, because if you were to tell a channel today that 100 crores to give a spin on 2 live shows with 3 actors, which we will send to you to talk about depression, it will happen, right? If you say that you will not bring up this issue unless there is a news thing happening only, and only keep it to that day and don't continue the next day and keep it mild, it will happen, because it's a business house. And that's the unfortunate part of today's media, that we are not that media which was being cultivated in the 50s, which was quelled in the 70s quite harshly by the government of the day. We are not that media. We are more of a house, business house, running as a business. But if you meet people individually in all media houses, and I'm saying without exception, and because one interacts with them on various other events and summits and things like that, there's a different feeling personally. So you can imagine that if there are 10 or say 4 mainstay anchors of a channel, even if all 4 individually feel that wo galat hua, imagine the power of the money that a channel can't speak, right?
So that is a way to look at it. I mean, I can pardon probably the channel part and the media part to a degree, but if you see, it's again born out of a lack of character and the will. Right. So finally, at a collective level, as a house, you have lost that character of a probing media agency or a go-getting media agency, and it happens with most of them. And that's why you find when you put the top six, seven channels of the country, and if you just take a timeline of 2.5 years, who started, where did it peak, where did it come down, where was the gap, when did it reemerge, you will find all these seven channels are on a different metrics. There are few who, from the beginning, first few days, and the stop, right? And those channels will come out in all kind of investigations. When you take the case of those three musketeers, infamous musketeers from Mumbai, in police uniform and polity, when these musketeers are getting exposed, the names of media channels will also get exposed, because it is a system, right? And unfortunate because this goes against the fourth pillar of democracy, that so-called a call which all media houses take a claim to go and probe things, to go and talk, unbiased. But unfortunately, Varun, I mean, maybe you, me, and Prashant and Preeti and the others coming here are not up for sale. But unfortunately, business is business, and it's like any other business. You pump in 250 crores into a channel and tell me which channel has to be stopped for what news. Probably it can be done, probably. But That's there right. are very few who have conviction, and then you had that conviction, you took action because you had the will to take action. And when you took action, it became detrimental to one particular channel, in particular in this case, and even the editor in chief had to go to jail, right? Yeah. So that is Yeah. the way it goes. So there is enough. I mean, a layman's view will tell you today where is the media pitched on this issue and why the U-turns have happened, and nothing. There are only three vices in which a human can be, sold out, and it's wealth, wine, and women, whatever you want to call. But wealth is the part which disturbs the business part, and other two are only the lucrative factors to take out confessions from people. That's it. So That's the wealth power is a humongous power, and I'm quite sure, because evidences. Prashant will talk about this case. You said he's done a lot of analysis. correct. How can such evidences not speak for themselves? How can a botched up medical course taken that time not be exposed? How can U-turns of a specialist talking on a body as a postmortem report get changed, even verbally on TV screens? How Yeah. come people with no credentials in anything to do with this forensics or otherwise just come cutely on TV channels because they belong to a fraternity of acting community, and talk some nonsense and deride that person's own character and will, to a case of being mentally disturbed? These mentally disturbed people, they are themselves challenged in life. They are making all the wrong choices. They are getting compromised by the day, and still they had the gumption in the last 2.5 years to speak about a soul who could not speak for itself down here, and malign. And that's the brute power of the infamous money, what it can do. But what money can't do is not bury the evidences completely. Yes, this case has lost a lot of evidence. The entire so-called win from the case went away initially because there was not enough evidences. But I'm quite sure the evidences which you see every day, it's with everybody, with channels, with politicians, with CBI, with everybody. It only has to be drawn down. Yes, finally it could be a case against the anonymous, and anonymous can be blamed if you don't get a name, probably. That's the only thing. But Yeah. certainly, I mean, it's not a case of hanging yourself, right? So it's Yeah. not such case. So at least that closure has to come sometime in the day, forensically, and a lot of evidence is available. बाकी पैसा है, जो कर सकता है. बिल्कुल, जहाँ तक एविडेंसेस की बात है, and Prashant is here. Uh, he also came into limelight because of one of the sessions that he did, और उस टाइम पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स और एविडेंसेस के साथ, चीजों के साथ प्रशांत ने भी किया था, बट मोर ऑन अ जनरलाइज लेवल. हालांकि हमारे साथ रुद्रा भी ज्वाइन करेंगे, who will talk more about those evidences and where we stand. But प्रशांत, आपसे तो मैं इस टाइम पे ये पूछूंगा, आपने इस पूरी मूवमेंट को शुरुआत से, आई थिंक यू आर द वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट इंसाफ एसएसआर का वो बैनर. कोई नहीं भूलता कि किस तरह से ग्लोबली लोगों ने इंसाफ एसएसआर का बैनर पकड़ के इस मूवमेंट को एक तरह से किक ऑफ किया था.
और आज की डेट में ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं और इस मूवमेंट को बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की एंड व्हाट नॉट, बट ये मूवमेंट इसी तरह चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बट क्या लग रहा है आपको आफ्टर ऑलमोस्ट 3 years, वेयर आर वी एंड क्या कुछ चीजें हैं, लेसन्स लर्नड हैं इन द लास्ट 3 years जो आप कहेंगे कि दीज वर गुड थिंग्स एंड देन दीज वर सम ऑफ द लेसन्स जो हमें याद रखने चाहिए ताकि दोबारा से हम उन गलतियों में दोबारा ना फंसे? मुझे लगता है सर कि हम अपनी लाइफ को जितना छोटा समझते हैं कि हमारी लाइफ है और हम आज इससे परेशान हैं, आज ये चीज सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, ये लाइफ इतना छोटा है नहीं। एक्चुअली हमारा लाइफ भले ही 60 70 80 का हो, लेकिन ये इसमें कई सारे लोगों का कहते हैं कि अगर आज हमारे लाइफ में कुछ हुआ है, आज सुशांत के लाइफ में कुछ हुआ है, तो इससे रिलेटेड भी आगे 50 साल 100 साल 200 साल बाद भी वो लोग उस चीज को याद रखेंगे, उस इंसिडेंट को याद रखेंगे। कल को हम हो ना हो या कोई और हो या ना हो, लेकिन ये इंसिडेंट लोगों को याद रहेगा। और जिस तरह से सुशांत ने बलिदान दिया है अपना, वो भी याद रहेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से न्याय प्रक्रिया चल रही है ना, आज 3 साल में भी हम बहुत कम पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद हर किसी के दिल में है, हर हिंदुस्तानी के दिल में है। पूरे सुशांत के फैन जितने भी वर्ल्ड वाइड हैं, सबके दिल में है कि न्याय तो मिलेगा, आज मिले कल मिले, मिलेगा। तो हमें लेट होने से घबराना नहीं चाहिए, कितना समय लग रहा है, कितना वक्त लग रहा है। बस हमारी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि हम डटे रहें। हम किसी भी रूप में ऐसा नहीं स्वीकार कर लें कि इतना समय बीत गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। आप बस इतना याद रखें कि 10 साल बाद भी अगर केस फिर से उठेगा, और मैं तो कहता हूँ सुशांत एक ऐसा सोल है जो हर किसी को रह रह कर दर्द देगा। 6 महीने बाद दर्द देगा, जो जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया, साल भर बाद दर्द देगा, लेकिन वो दर्द देता चला जाएगा। जब तक उनकी जीवन होगी, जब तक ये एरा चलेगा, तब तक ये दर्द होगा। क्योंकि जो बुरे हैं उन्हें दर्द होगा, और जो अच्छे हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज आएगा कि आज गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ, कल गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ। तो समय जो भी लग रहा हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर ऐसे भारत देश की बात की जाए तो थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए थी, सब कुछ जल्दी होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं सारे जितने भी अपने भाई साथी हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हमें परेशान नहीं होना है। जो भी हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। सुशांत एक कहते हैं ना, एक रूप बने जो ईश्वर ने उन्हें चुना था कि आपको इतना कुछ करना है, उसके बाद आपकी लाइफ यहाँ खत्म होगी। लेकिन जो खत्म हुई लाइफ उनकी, उससे बहुत सारे लोग सीखे, बहुत सारे लोग आज उनको अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। तो ये बड़ी चीज है। और जितना समय लगा है अभी, मुझे लगता है 1 से 2 साल और लगे, शायद 3 साल और लगे, लेकिन केस पूरी तरह से सॉल्व जरूर होगा। बिल्कुल, यही कहूंगा। बिल्कुल। मैं यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप तीनों से भी बात करना चाहते हैं एंड ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव। मैं कुछ लोगों को यहाँ ऐड जरूर करूंगा सो दैट दे कैन डायरेक्टली टॉक टू यू। उनमें से एक तो ऑब्वियसली हमारे खुद की गिरिजा जी हैं, एंड आई एम गोना ऐड रुद्रा एंड कांसा। शुरू में कांसा से इसलिए करूंगा बिकॉज शी इज वन वॉरियर जो हमें, मैं तो इतना ही कहूंगा, वैसे तो सोशल मीडिया पे शी इज एक्टिव, बट सुशांत डे इज वन डे वेयर विदाउट फेल, मुझे नहीं कहना पड़ता, ये अपने आप पिंग करती हैं, अपने आप पूछती हैं कि सुशांत डे पे क्या हो रहा है और क्या, कब, कैसे, कितने बजे शी कैन जॉइन। एंड इट्स रियली हार्ट वार्मिंग। जितना मर्जी हम वो मैंने जैसे पहले भी कहा, लव हेट रिलेशनशिप रखें पाकिस्तान से, बट एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस। एंड सुशांत के लिए जिस तरह से ये इसने वो इसका भी मैं वही जैसे कहता हूँ, राइट, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट गेट एच्ड ऑनटू आवर माइंड्स, ऑनटू आवर हार्ट्स। फर्स्ट सुशांत डे पे जिस तरह से कांसा ने अपने रूम में वो सब चीजें दिखाई थी सुशांत के लिए, आई थिंक that has lived with me forever, and every single time I really like what she does. आज भी अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ट्विटर पे अपनी एक पोएम डाली, और मैं चाहूंगा बल्कि उसके बारे में भी जरूर हमें सुनाएं भी, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बात भी करें सुशांत के बारे में। एंड everybody pretty much, चाहे वो प्रशांत है, चाहे वो कर्नल है, प्रीति पांडे, गिरिजा जी, everybody feel free, Kansa, and share your experience. अच्छा, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते, मतलब जिस तरीके से आप लोग इसको लें। और गिरिजा जी को तो मैं जानती हूँ,
इनसे तो मेरी बात हुई थी और मैंने वरुण जी से कहा था, मतलब मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा था आपसे बात करने का। बाकी कर्नल साहब, आपसे फर्स्ट टाइम मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और प्रीति, आपका नाम मैंने बहुत ज्यादा सुना है, मतलब आपका बहुत ज्यादा देखा है मैंने, आप किस तरीके से सारा मूवमेंट को लेके चलती है, लेकिन आपसे भी इंटरेक्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो आप दोनों को मेरी तरफ से हाय। और बाकी प्रशांत की जहाँ तक बात है, तो मूवमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में तो प्रशांत से मेरी बहुत ज्यादा बात होती थी। उसके बाद बस फिर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि बात भी थोड़ी कनेक्ट, जो था हमारा कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया, बट स्टिल ये है कि जान पहचान है। बाकी वरुण जी जो एंड है वो तो उनसे तो बहुत मतलब एक गहरा ताल्लुक है। बस और ये हम कोई जरूरी नहीं है हम रोज बात करें या हम रोज इंटरेक्ट करें। आई थिंक कुछ लोगों के साथ, जैसे कर्नल राइट फॉर एग्जांपल प्रीति जी हैं, यहाँ गिरिजा जी, मुझे लगता ही नहीं आज मैं कर्नल से, आई डोंट नो लास्ट टाइम मेरी कब बात हुई थी, कब मेरी चैट हुई थी, आई डोंट नो, बट इट डजंट फील लाइक देयर इज अ डिस्कनेक्ट। सेम प्रीति जी, आई मीन प्रीति जी का तो मैं कहता हूँ ये प्लेटफॉर्म ही जैसे प्रीति जी का है, जब आएंगी जब जैसे आती है। प्रशांत के साथ भी मेरी कोई इतनी नहीं, बट थैंक्स टू सुशांत कि हमने वो एक बॉन्ड बना लिया है एक दूसरे के साथ। हम मिले भी नहीं है, 3-3 साल हो चुके हैं, आप देख लें 3 साल से हम सिर्फ मैं कर्नल को मिला हूँ, गिरिजा जी को मिला हूँ, और मैं अभी किसी को नहीं मिला, राइट? But still, we share that kind of bond. So, yes, guys, I saw the chat. We will try to keep it in English as well, but this is a global platform, so please, we will speak in like. अभी आप शुक्र करें कि मैं पंजाबी में बात नहीं कर रहा या कोई और किसी और लैंग्वेज में नहीं कर रहा, so we'll keep it like in both the languages, Hindi and English, but bear with us. So, but more importantly, इस टाइम पे सबसे पहले तो मैं कांसा शुरू के लिए यही कहूंगा, if you can recite the poem जो आपने लिखी थी, मुझे वो सुन के वो देख के बहुत अच्छा लगा था। प्लीज हमारे सारे गेस्ट के लिए, मुझे नहीं पता इन लोगों ने सुनी कि नहीं, बट आई वुड लव यू टू काइंड ऑफ हम दोस लाइंस। जी ठीक है, वो मैंने लिख के रखे है, तो अगर आप कहें तो मैं श्योर, स्टार्ट करती हूँ। प्लीज। एक्चुअली ये है कि कुछ वर्ड इसके उर्दू में होंगे, तो अगर आप लोगों को ना समझ आए तो प्लीज काइंडली आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। श्योर। ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए। ये माना कि अनजान है हम तुमसे, ये माना कि अनजान है हम तुमसे, न जान न पहचान न रास्ता कुछ तुमसे, फिर भी क्यों लगते हो अपने अपने से, जैसे हो तुम्हारे सपने मेरे अपने से। तुम तो आसमान पर चमकता एक रोशन सितारा हो, और हम जमीन पर बसने वाले फक्त मदाह तुम्हारे। फक्त मदाह का मतलब होता है, फक्त होता है सिर्फ, और मदाह का मतलब होता है फैंस। ये कुर्बतें, ये चाहतें, ये मोहब्बतें तुम ही से तो सीखी हैं, तुम ही ने तो बतलाया है खुद को कुर्बान करके दूसरों को जावजा करना। मतलब खुद को सेक्रीफाइस करके, जावजा का मतलब होता है दूसरों को फॉर एवर कर देना, हमेशा के लिए कर देना। जैसे सुशांत ने, मतलब हम सबका कनेक्शन बना दिया आपस में। तुमसे बिछड़ जाने का गम अब तक है दिल में ताजा, तुमसे बिछड़ जाने का गम अब तक है दिल में ताजा, पर मिलेंगे तुमसे अगले जहां में, है ये हमारा वादा। मतलब इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। क्या बात, बहुत बढ़िया। एंड या थोड़े से वर्ड्स थे, बट आई थिंक हमें एटलीस्ट जब मैं सुन रहा था तो समझ आना गया था कि व्हाट वाज योर इंटेंशन। जी पूरा समझ में आया। काजब जी बहुत अच्छी पोयम लिखी आपने, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान बोला ना आपने? जी जी, पाकिस्तान से उर्दू बहुत में लिखी अच्छा, है, ये पाकिस्तान से है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं खुशी इस बात की हो रही है कि मैं भी यही कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत कोई सिर्फ बिहार, मुंबई, बॉलीवुड, भारत नहीं, विश्व के पटल पे सुशांत सिंह राजपूत का नाम जगमगा रहा है, एंड यू आर एग्जाम्पल ऑफ दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। यस, बहुत ही दिल को छू लिया। एक्चुअली ये, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। बहुत ही, इट वाज वेरी हार्ट ट्रेंडिंग, वेरी टचिंग। थैंक हिंदी और उर्दू को अलग नहीं कर सकते, लाइक इन इंग्लिश सो मेनी लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव कम, दैट इज इंग्लिश इज अ ग्रोइंग लैंग्वेज। सो हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, इन Tamil words are also there. That's what we feel. And we don't know if in Tamil some of the Sanskrit words have come. So it is all from different languages say, Aata hai. That's how it should be. A river keeps flowing only when it accepts
certain other sources. Only मैं यही इधर सोर्स से निकल रहा हूँ, वही पानी लूंगा. If a river says that, then it will dry up. But अलग अलग tributaries होते हैं और अलग भी होते हैं. तो similarly language भी वैसे ही है. अलग अलग period से different languages से it absorbs words. So that is how English has grown. That is how Hindi is growing. That's how languages grow. If they keep only that vocabulary, वो बड़ा ही नहीं होगा. और इतना सुनने को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा. एंड लिखते रहिए. सुशांत भी ऊपर से बहुत खुश होगा. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. Yeah. Thank you As so usual, much. Kansa, it's just so great to always see you. Log, obviously there is a, like I said, love-hate relationship, but more importantly, when it comes to Sushant, I think वहां पर ये सारे, और मुझे तो लगता है प्रीति जी को अच्छा भी लग रहा होगा कि फॉर अ चेंज कोई उस तरफ से इनको थोड़ा अप्रिशिएट भी कर रहा है. नहीं तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ प्रीति पांडे का ट्विटर पे, स्पेशली फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किस तरह से नफरत और इतने गंदे वर्ड्स और क्या क्या नहीं लिखा जाता. So, not everyone is the same. That's the message that Sushant really wanted to spread. कि चाहे आप किसी भी जगह से हो, you are a human first. And then people divide them into countries, religion and whatnot, तो ये कि मैं बहुत वरुण जी एक बात ऐड करूंगी कांजा जी वाली बात पे. जब हम डिबेट में बैठते हैं तो जो हमारे ऑपोजिशन में पैनल बैठता है सुशांत के केस को लेके, वो इसी भारत माँ की गोद वाले हैं सारे, जो हमसे लड़ते हैं या हमें कर बिल्कुल. देते हैं. मुझे बिल्कुल. खुशी बिल्कुल है बिल्कुल. हमारे पड़ोसी देश में भारत माँ की एक बेटी वहां पे भी है जो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इतनी अच्छी पोयम और इतनी अच्छी चीजें लिख रही है. थैंक यू सो मच. मतलब ये बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. मैं इसी में यही ऐड करना चाह रहा था कि पोयम बहुत अच्छा लिखा कांता जी ने, और ये जो भी शब्द हैं इनके, उर्दू के हों अल्फाज या हिंदी के या जो भी हों, ये सब अखंड भारत का ही शब्द है. तो हमारा शब्द आपका शब्द बड़ा ही समानांतर और बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, और सब बहुत हद तक समझ जाते हैं. तो ये अच्छी बात है, और बस इसी तरह से सुशांत से हम सब प्यार बनाए रखें और सुशांत के लिए लड़ते रहें. थैंक यू अगेन खानसा. और कुछ और भी आप कहना चाहती हैं तो कहें, उसके बाद आई एम गोना टेक रुद्रा एज वेल. और बस यही, जैसे प्रीति जी ने कहा कि जो है, मतलब आप लोगों ने कहा कि वहां से बहुत गालियां सुनने को मिलती हैं या बहुत ज्यादा, तो वो मैंने भी काफी एक्सपीरियंस किया है कि आप लोगों से मतलब मैं बात करती हूँ तो वो एक अलग फीलिंग है कि भाई वो लोग तो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट होते हैं. मैं जैसे वरुण जी से बात होती है, मैंने जो फर्स्ट टाइम वरुण जी को मैसेज किया था ट्विटर पे, तो मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जवाब दिया. मुझे लगा था जवाब नहीं आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगा कि देखेंगे पाकिस्तान है, लड़की के अकाउंट पे लिखा है पाकिस्तान, जवाब ही नहीं आएगा. तो वो जवाब आया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किया. तो वो बस यही है कि कुछ वहां पे भी ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत गालियां सुनाते हैं, बहुत बातें सुनाते हैं, बट ठीक है, नेवरदलेस कोई मसला नहीं है. मतलब जो लोग अच्छे से कनेक्ट करते हैं, आप लोगों से मिलके, आप लोगों से कनेक्ट करके, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे एक श्वेता दीदी को तो आप लोग जानते हैं, मतलब मेरे 2 साल से उनसे फ्रेंडशिप है. तो मेरे इतने फ्रेंड्स बने हैं ट्विटर के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, और वो सारे इंडियंस हैं, और मतलब उनके साथ बात करके इतना अच्छा लगता है. अभी तक मेरा उनके साथ कनेक्शन है. तो ये मतलब जरूरी नहीं इंसान की बात होती है, ये बॉर्डर के इस तरफ हो, बॉर्डर के उस तरफ हो, इट डिपेंड्स. अब मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, मुझे नहीं लगता वैसे मुझे करना चाहिए, बट लेकिन फिर भी मैं, अभी रिसेंटली एक टीवी एक्टर की डेथ हुई है, आप लोगों की, सुसाइड किया उन्होंने, टुनिशा शर्मा, आप लोग जानते ही होंगे. तो वो हाँ जी, मैंने वो उनकी डेथ, पहले विशाली का सुना मैंने, वो भी मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि मैंने उनका एक सीरियल देखा था. फिर मैंने टुनिशा के बारे में सुना. आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे इतना दुख हुआ और मैं इतना रोई जस्ट लाइक सुशांत. मुझे तो ये था कि मैं दोबारा वही फेज मेरा चलने लग गया. मतलब मुझे इतना, मैंने कभी उनका कोई सीरियल नहीं देखा. फिर स्पेशली अब जो उनका लास्ट सीरियल चल रहा था, मैंने वो सारा देखा जब तक कि मतलब उस सीरियल में वो थी. तो वो मुझे इतना बुरा लगा. मैंने उनके मामा जी से भी बात की, उनको मैंने इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया कि मुझे बहुत बुरा लगा उनकी सुसाइड का सुन के. मतलब कुछ ऐसी सोल होती हैं बहुत पाइस, बहुत प्योर, कि जिनसे आपका कनेक्शन बन जाता है, वेदर इट इज सुशांत या वेदर इट इज टुनिशा. तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों मेरा दिल लगता है कि बस मुझे लगता है कि नहीं, वो चले गए हैं ना, तो दुनिया खत्म हो गई है. बस कुछ इस तरीके से ही है.
I know. नहीं, I think that makes me believe or proves के humanity is still alive और वो humanity के basis पे ही हम लोगों को वो connection बनता है. सुशांत, जैसे अभी प्रीति जी ने भी बोला, कर्नल तो obviously he has not watched any movies. फिर भी हम लोग किसी ना किसी तरह सुशांत से कनेक्ट हो गए और आज की डेट में जिस तरह जब मैं प्रीति जी को देखता हूँ स्क्रीन पे सुशांत के लिए बोलते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि एज इफ ये पता नहीं बचपन से शायद सुशांत को जानती हैं या कोई तो ऐसा कनेक्शन है जिस वजह से इतना कोई कैसे किसी के लिए बोल सकता है. और बट ये लास्ट 3 इयर्स में आई थिंक सुशांत हम सबके साथ हमारा खुद का एक इंटेग्रल फैमिली का पार्ट बन गया है और सीरियसली हमें ऐसा लगता है कि we've lost somebody from our family, not somebody who was just a movie star. So hats off to him and more power to the family ताकि वो भी इस fight को continue रखें. So thank you Kanza. Hello Akashveer ji, hello Ayush. I'm gonna go to Rudra. उसके बाद मैं गिरिजा जी के पास and then I'll go. रुद्रा, वेलकम. सबसे पहले तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा प्रियंका दी का वो ट्वीट जहां पर शी वेंट टू द डॉग शेल्टर एंड आई सॉ यू एज वेल. सो उसके बारे में भी थोड़ा शेयर करें एंड एट द सेम टाइम टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस होल जर्नी सो फार. प्लस यहाँ पर प्रीति पांडे भी हैं एंड बॉयकॉट पठान जो एक ऐसी ग्लोबल मूवमेंट है उसके बारे में भी जरूर छेड़ना क्योंकि मैं चाहूंगा उसके बाद प्रीति जी से पठान के बारे में भी थोड़ा सुनना. सो रुद्रा प्लीज गो अहेड. बिल्कुल. हर महादेव, जय श्री राम, बॉयकॉट बॉलीवुड फॉरएवर एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत सर. पहली चीज मैं इतना ओवरवेल्म हूँ किस चीज को लेकर कि जब अभी प्रीति दी को देखा तो मुझे याद आ गया, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि 2020 में पहले मैंने दी को देखा कि वो टीवी में एकदम दहाड़ रही सुशांत सर के जस्टिस के लिए. सारे दिन वो याद आने लगे. और जो पहली प्रोटेस्ट हुई थी दिल्ली में जंतर मंतर में, उसमें भी उसके बाद भी दीदी जो है बार बार वो जंतर मंतर में आना. और अचानक से अभी देखा तो 2023, मतलब समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला. मतलब हम इस चीज को लेके बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतनी डेडिकेटेडली प्रीति दी, आप सभी लोग, हम सारे एसएसआर वॉरियर्स इसमें अपना अभी भी बिना वो कहते हैं ना डिटर्मिनेशन को कम किए या वो उसमें कोई कमी नहीं है और हम लड़े जा रहे हैं. तो पहले प्रीति दी को कोटि कोटि प्रणाम. और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है और मैं शायद ये मेरी किस्मत है इस जीवन की, एक बहुत अहोभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया. मैं कह पाऊंगा कि मैं प्रीति दी से मिल पाया. थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच. ये बहुत बड़ी बात है. और एक चीज मैं हमेशा कहूंगी, जितने लोग सुशांत की मूवमेंट में, मेरा वैसे मैं लोग पूछते हैं आपके कितने भाई हैं तो मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहने में कि एक ही भाई है. मेरे भाइयों की लिस्ट इतनी बड़ी है वरुण जी कि मतलब अगर मैं राखी पे गिफ्ट लेना शुरू करूँ ना, कसम से बता रही हूँ पूरे साल का गिफ्ट आ जाएगा मेरे पास. तो रुद्रा थैंक यू सो मच. और प्लीज दिल्ली जब आओ तो ऑफिस या घर जरूर. एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं आपसे मिली और इस मूवमेंट का हिस्सा पहले दिन से लेके आज तक है. और आपके ट्वीट को मैं लगातार देखती रहती हूँ. सिर्फ मेरी ट्वीट से आग नहीं निकलती है, बहुतों के ट्वीट से आग निकलती है, बदनाम सिर्फ मैं हुआ. थैंक यू सो मच. अब बिल्कुल बिल्कुल. और अब आते हैं, केवल भाई नहीं है, ताऊ भी हैं, बैठे हैं यहीं पे हैं. बिल्कुल. और दूसरी चीज ये है कि जैसा हम सबका सबसे अच्छी बात अभी इस लाइफ की और एक चीज लगी कि एक लाइन जो बहुत फेमस है, मैं कोट करना चाहूंगा ऑलरेडी, कि कहते हैं ना, डिवाइडेड बाय बॉर्डर बट यूनाइटेड बाय सुशांत सर. तो ये मैं जरूर कहूंगा, बहुत ही अच्छा लगा. और सही में सभी को कोटि कोटि प्रणाम. सभी जब जाओ जहाँ पे भी है, जिस प्रकार से लड़ रहे हैं. और फिर आते हैं आज बहुत मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके लिए आई डोंट नो कैसे मैं वर्ड्स में कहूँ. इट वाज एनिमल शेल्टर जिसमें कि डॉग्स भी थे और कैट्स भी थे, गौ माता भी थी और बहुत से थे. सबसे क्या था कि एक चीज की शायद ये लाइफ में पहली बार होगा कि जब मैं उनके पास जाके इस तरीके से, अब कैसे इसको शब्दों में समझाऊं, वो आके कम्युनिकेट ऐसे लग रहा था करे कि लाइक उनके साथ वो समय बिताना, उनको वो उनके साथ वो जो है ना, उनको खाना खिलाना, उनको प्यार करना, मतलब वो शब्दों में नहीं, मतलब वो आपको फील करने के लिए वहां पे जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. तो क्या कहते हैं, पीपल फॉर एनिमल्स जो शेल्टर थे उनको भी कोटि कोटि प्रणाम कि वो इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं कि इतनी बढ़िया से इलाज करवा रहे हैं. मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि ये नहीं कि चलो ठीक है हम ऐसे डॉग्स जो रोड पे हैं या ऐसे उनको केयर कर रहे हैं,
अगर मान लीजिए किसी को कुछ मतलब कोई पैरालाइज है, कोई बीमारी है, उनका इलाज भी कर रहे हैं एकदम, जैसे होता है ना केयर करके, एकदम अपना समझ के अपने बच्चे जैसा, तो वो बहुत हार्ट टचिंग लगा। और ये भी चीज है कि ये एक अपने आप में एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि लाइक आप सोचो कि गौ माता की सेवा करना, ठीक है, इन 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 डॉग्स की जिनको कि लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, सोचिए उनकी उनको उनको देख पाना, उनके सेवा कर पाना, इससे बड़ी ब्लेस्ड चीज कुछ हो नहीं सकती है। तो वन ऑफ द ब्लेस्ड मोमेंट लाइफ का यही था। और बाकी जो वहां पे थे वही उस चीज को फील कर पाए हैं। दीदी ऑफ कोर्स जब वो केक कटिंग वाली चीज चल रही थी तो इमोशनल बहुत हो गई थी, लेकिन फिर जब वो स्माइल करके सर के तरफ देखी, सुशांत सिंह राजपूत सर के तरफ। रुद्रा, आवाज नहीं आ रही। ओके, रुद्रा का नेटवर्क कनेक्शन लगता है, बट while Rudra comes back, उससे पहले मैं फटाफट पहले गिरिजा जी को कहूंगा, because I think she has a session as well. Girija ji, please share your views and then we'll take Rudra again. When I'm sitting in front of Preeti ji, I feel as though I'm sitting in front of Ma Saraswati. Somebody who speaks from the core of her spiritual being. When I see her speaking, I get goosebumps when I listen to her. I'm so very happy that Sushant connected so many people from throughout the world, like Ashnurji we am seeing here. So, Varun, I never knew that you existed, right? But how we all came and how we trust each other is so strong. And that bond has been established only because of Sushant. I think it was Abdul Kalam who said that a man's credibility is established with the patience that he shows when he has nothing and the attitude that he exhibits when he has everything. And that is what we saw in Sushant when he was nothing, when he was struggling in Mumbai, even at the time, because I was watching his serial every day. So I saw his Pavitra Rishta. I felt like he was there in the living room with us. When we had lunch, we watched it together. When we had dinner, we watched it together with children. It was worth watching like that with children. It was family values. It was affection. And we felt as though he was there with us. And the way he handled the story was written so beautifully. And there was a sort of a genuineness in the way he came across that we knew that this is the person that he is. He was not enacting a character that was written by somebody, but actually the character was written keeping him in mind. That is the feeling that we got. Because off screen also he portrayed that person. When he was there with people, we never saw him frown. Small children may be talking, adults may be talking, and we used to see that there would be people talking for a long time, but there was so much patience, listening. There was the light in his eyes, which showed that innocence, that involvement with what is going on. And the same thing continued when he brought his Maserati, he moved to a bigger flat, he was a big hero. And then also when he was coming out of restaurants and five-star restaurants, and then children surround him with balloons, and he goes to old age homes, you saw the humility with which he handled people. So how can he not touch your heart? He's like a son of your family. So whatever happened to him is totally, totally unacceptable. And until we get justice, we cannot rest. I will stop. Thank you. I know I can understand Girija ji, or I know I still remember जब connect हुए थे हम, you were as emotional as you are right now, and you felt the same connection. बहुत लोगों के साथ वो connection है सुशांत का, and we've all committed. We've taken that oath. We are not going anywhere till Sushant gets justice. So be a little bit more strong. I know you are strong, but we will not stop. Tears only strengthen our ability to fight. Many people think that tears are a sign of weakness, but I think that is actually acid pouring out. Yeah. And every drop of tear is going to certainly harm the people, hurt the people, awaken the people, cleanse the people
who were responsible for this. Yes, Preeti ji, you want to say? Sure. गिरिजा जी, जो मतलब जो दिल के बड़े शरीफ और अच्छे लोग होते हैं ना, शब्दों का चयन वो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं जोश जोश में जब डिबेट में बोलती हूँ तो मैं मर्यादा में रह के लेकिन बहुत कुछ बोल जाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग ड्रामा करते हैं कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में जाके पॉजिटिव रहने के लिए, उनके आंसू नहीं निकलते। या बॉलीवुड के उन लोगों को जो 2.5 साल से बोलते ही नहीं है सुशांत के लिए, और जब अपना इंटरव्यू देते हैं किसी घटिया से चैनल पे बैठ के और घटिया से पत्रकार के सामने, तो आंसू उनके निकलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आंसू नहीं निकलते। यकीन मानिए, जो जिसने सुशांत को जोड़ा है, जो सुशांत ने जितने लोगों को जोड़ा है, उनमें सारे ही ऑलमोस्ट लाइक माइंडेड लोग हैं। आप वरुण जी, आप बहुत अच्छे से प्रतिमा जी को जानते हैं, मैं आपके थ्रू मिली हूँ। सुशांत ने चांद पे जमीन ली है, मुझे ये बात नहीं पता थी। और सुशांत की जमीन के, अब मुझे पता नहीं हाउ इट वर्क्स ऑल्सो, मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन सुशांत के लैंड के आसपास, मतलब सुशांत को प्यार करने वाले ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि सुशांत के आसपास कोई और लैंड ले, और उन्होंने सुशांत के आसपास एक बहुत बड़ा हिस्सा लैंड का लिया है, क्योंकि वो अपने और सुशांत के बीच में किसी को आने नहीं देना चाहती। और वो महिलाएं हैं, वो लड़की हैं जो सुशांत से कभी नहीं मिली। वो विदेश में रहती हैं, वो एनआरआई हैं, वो 20 साल से बाहर हैं। हम तो डिबेट में आते हैं, हम फिर भी दीदी से मिले हैं, हम मीतू दी से मिले हैं, प्रियंका दी से मिले हैं, मैं उनके फादर से मिली, मैं पटना उनके घर गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं मिले, जिन्होंने कभी इंटरेक्शन नहीं किया, जो कभी इस केस का हिस्सा नहीं रहे। वो अपना तन मन धन तीनों से अगर सुशांत को मानते ना, तो यकीन मानिए सुशांत एक इतना बढ़िया सोल था, जिन्होंने गिरजा जी से मिलवाया, जिन्होंने वरुण जी से मिलवाया। तो आपके आंसू जो है ना, वो मतलब सच्चाई का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। Thank you. I know, Girija ji, you have a session in next 4 minutes, and you need to be, in a different mode. I know you will shift gears easily. So thank you once again. I'll go back to Rudra, and then I'll go to Akashvir ji and then Rachna. Rudra, please go ahead. You were sharing the या experience there. एग्जैक्टली तो जब वो दीदी इमोशनल हुई तो दीदी को बस वही, तब मुंह से बस यही निकला कि दीदी हम सब साथ हैं और जरूर जस्टिस मिलकर रहेगा। और दीदी को वादा किया कि कोई कुछ भी हो जाए, जो भी एसएसआरियंस एसएसआर वॉरियर्स है, वो आपके साथ और परिवार के साथ अनकंडीशनली पूरे दिल से सच्ची श्रद्धा के साथ खड़े रहेंगे लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि आपसे ही ये जो है मुहिम आगे है। तो बस वही, उसके बाद दीदी का थोड़ा सा मूड अच्छा हुआ, फिर हमने और भी टाइम स्पेंड किए, तो वो एक अपने आप में वो था। तो आई होप कि ऐसे ही हम दीदी को जो है सारे लोग एक जो दिन रात हम मॉरल सपोर्ट देते रहते हैं, हालांकि वो अपने आप में एक योद्धा है, लेकिन फिर भी जब एक प्यार वो मॉरल सपोर्ट जाता है तो कहीं ना कहीं एक वो एक पॉजिटिविटी देता ही देता है। तो यही चीज है कि हमें क्या कहते हैं, भगवान पर और सबके पे विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है, और ऐसे ही हम एक साथ रहेंगे तो जस्टिस तो एक दिन मिल करेगी। क्योंकि प्रीति दी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैंने सुना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपनी यूनिटी से और पॉजिटिविटी से इतना मजबूर कर देंगे कि सबको फिर से वैसे ही बोलना पड़ेगा जैसे 2020 में बोले थे, और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पूर्ण रूप से जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबका नाम सामने लाया जाए, कि जीत सच्चाई की हो, जीत अच्छाई की हो, जीत उस कबाल की ना हो। तो बस यही चीज है। और जहां तक बात रही बॉयकॉट पठान की, तो सीधी सी बात है, मतलब इतने बेशरम लोग हैं ये लोग, मतलब पॉजिटिविटी की, ये मैं कबाल बॉलीदाऊद कबाल मैं कहता हूँ इनको, तो इनकी है बेशर्मी की बात ये है कि ये लोग को पता है कि इनके किनके साथ क्या कनेक्शन है। और प्रीति दी ने फिर से बहुत अच्छा वो कोलकाता वाला चीज को कोट किया, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, और इसी के जो इनके जो चमचे हैं, इनके जो ये लोग है कहने को सो कॉल्ड समर्थक है, फैंस हैं, ये आके गंदगी फैलाते, नेगेटिविटी फैलाते, और ये खुद स्वयं भी नेगेटिविटी फैलाते, तो पता नहीं किस मुंह से ये जो है ये सारी चीजें बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो बॉयकॉट पठान ही सिर्फ नहीं, जितनी भी मूवी आ रही है सबका बहिष्कार होगा। और यह भी बात सब कोई जान ले अच्छे से, ये आम लोगों ने बॉयकॉट बॉलीवुड मूवमेंट शुरू किया है, तो यह आम लोगों के द्वारा शुरू किया गया मुहिम है, हम सबके द्वारा शुरू किया गया मुहिम है। ये रुकेगा नहीं जब तक पूर्ण रूप से बॉलीवुड के अंदर की गंदगी का सफाया नहीं हो जाता, ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो क्या ही पठान मूवी, क्या ही कोई और मूवी, सारी मूवी का बहिष्कार
इन फेक हीरोज का बहिष्कार, जो ब्रांड इंडोर्स करते हैं इनका भी बहिष्कार। जय हिंद। जय हिंद। Absolutely. Thank you, Rudra. Ayush, give me one more minute. पहले मैं आकाशवीर जी को ले लूं, उसके बाद आते हैं आपके पास भी, रचना भी है। प्लीज गो अहेड आकाशवीर जी। कोई बात नहीं वरुण भाई, मैं सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रुद्रा जी ने जो कहा है कि बॉलीवुड को बायकॉट करना है, बॉलीवुड को बायकॉट नहीं करना है, बॉलीवुड को कब्र में दाब के सुलाना है। और मैं इस टीम का हिस्सा बना हूं इस वक्त, जब प्रीति पांडे जी हमारे साथ हैं, और मैं तो कहता हूँ आरडीएक्स एक विस्फोटक सामग्री रचना जी हमारे साथ है, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया मूवमेंट है। तो मैं तो इसको सुनना ज्यादा चाहूंगा, अपनी बात कहना कम चाहूंगा। तो प्लीज जो भी अपनी बात कहना चाहे, पहले वो कहने, उसके बाद मैं अपनी बात कर लूंगा। Sure. Thank you. All right. Yes, Rachna, please. Ayush, if Ayush is in a hurry, he can go, and then I can go next. Okay. Ayush. हेलो, नमस्ते सभी को, Namaste. और सभी को हैप्पी सुशांत डे, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं। मेरे लिए इस मूवमेंट में सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि मैं फर्स्ट टाइम डिजिटल प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, और लास्ट फ्राइडे को मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं माउंट ब्लैंक जा सका। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। जैसे ही ऑटो एंटर हुआ उस एरिया में, उसके सामने ठीक वो जॉगर्स पार्क है, आयुष, आपकी आवाज चली गई। Joggers Park ke baad, I don't think we can hear anything. Yeah. Okay. So I'll just say something. Preeti ji, Yes. thank you so much for being here. I'm just so excited. Whenever I see people like you, it just gives us a lot of courage to, keep moving forward. Prashant is here, and I was cleaning the kitchen floor this morning, and I was thinking ki जैसे हम लोग, how we chase away all the dust from the house and throw it outside, right? Using the broom and everything. I was thinking कि हम सब लोग in our own ways we are doing the same thing. Bollywood की गंदगी जो भी है, in our little bit, in our awareness, whatever we know and whatever we can do, I think we are trying to chase away all the dirt and I don't want to use any bad words like Preeti ji today, as she is also thinking not to use any bad words. But for me, मेरा रचना जी मन नहीं मान रहा है, दिल आता हुआ कुछ भी नहीं मान रही है, लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगी। सुशांत का बर्थडे। So I was just thinking for me, रचना जी आप बिंदास बोलने के लिए फेमस हैं, तो आपको बिंदास बोलना है। मैं आपको बिंदास सुनने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। Thank you, Akashir ji. So for me, I think how can I take my life forward with all the lessons that Sushant was trying to imbibe in his own world, right? So as a meta thinker, I think he was a consummate meta thinker. That's what I think he is. And जब भी वो, whether he's staring into space, whether he's staring onto the moon, whether he's talking about spirituality, he was a biohacker, and he was the ultimate person who could elevate to his most positive and his best self. For me, he's a meta thinker. He's always operating at a higher frequency. And as Preeti ji and RDX were saying, right, ki no matter who is around him, fraternity ho ya media ho ya fans ho, koi bhi kuch bhi bole, he will never stoop to any lower standard than what he has set for himself. So meta thinker ho gaya, operating at a higher frequency ho gaya. And the third thing is, I want to live the way Sushant was trying to live his life, intentional every single day. If you see his films, if you see the projects he was trying to get associated with, or the events that he was choosing to attend, every single thing, book club ho ya poetry club ho ya any kind of women in technology promote karna ho ya any movie choices that he has done, Chichore, lessons about a parent, how he realizes that
the most important thing for a child is to live up to his highest potential in whatever he's happy with, right? So there are so many things he is intentional about doing, right? So meta thinking, living with high frequency, and living intentionally, those are the three lessons that I learn, and I learned from Sushant, and because of which I think the whole this is resonating with so many of us, right? हम लोग एक जगह पे नहीं है, but फिर भी we are together in spirit, fighting for his justice. And I have a very good feeling, as Preeti ji was also saying, ki nobody in that cabal right now is in any kind of respectable place right now in society. And if this is not Sushant's goodwill and his power, I don't know what is. So it is just amazing. Thank you for the opportunity, Varun, and thank you so much for being able to connect with everybody like this. Thank you. Thank you, Rachna. Preeti ji and Colonel is back. मैं दोनों को पहले before I get to Ayush again, फिर से मैं वही पूछना चाहूंगा. It's been close to 3 years now. We've seen a lot of ups and downs. We've seen some good updates, some bad updates. But इस टाइम पे जिस तरह से ये मूवमेंट जिस फेज में है, people coming out, जैसे कर्नल ने पहले भी बात की थी इसके बारे में, the अप्रूवर और the कूपर हॉस्पिटल के वो जो रूप कुमार उनका बाहर आना, then there were other things that also were said in the recent past. इसको क्या हम एक साइन की तरह लें, या and what would be one suggestion that you can give to some of the warriors who are losing that steam, वो जो सोच रहे हैं कि यार ये शायद नहीं होने वाला. मैं कुछ दिन पहले की बात है, किसी से जनरल ऐसी बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि लगता नहीं है सुशांत को कभी जस्टिस मिलेगी. So if from your perspective you have to motivate them or you have to tell them कि what, नहीं, यहाँ पर you're all going in the right direction, how would you do that? So कोई भी अगर आप, प्रीति जी या कर्नल, हाँ, उसके बाद हम काश्मीर जी का कमेंट लेते हैं. हाँ जी, बोले प्रीति जी, बोले. मैं बोलूं, वरुण, सबसे पहले तो क्योंकि अभी इस फिल्म का नाम आप बार बार ले रहे थे, तो सब लोग बार बार पूछ रहे हैं ना कि सरकार अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अराउंड द ग्लोब जो भी फिल्म अब आने वाली है, आई एम नॉट नेमिंग एनी फिल्म, जो भी फिल्म आने वाली है, जिनको बहुत घमंड है कि हमारी फिल्म, ये कुछ जो गिने चुने लोग हैं जो एसएसआर के नाम पे हम इतने दिन से रेवोल्यूशन चला रहे हैं, या हम बॉयकॉट बॉलीवुड चला रहे हैं, लेट्स गिव इट अ मैसेज. इन सब घमंडी दो कौड़ी के जितने ये चर्सी वुड हैं, जितने ये गटर वुड में रहने वाले लोग हैं, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि सुशांत के बर्थडे पे लेट्स प्रॉमिस ईच अदर कि भैया ये जो फिल्म आ रही है ना, इस फिल्म से इनकी हम हैसियत दिखा देंगे कि एक ट्रिब्यूट सुशांत सिंह राजपूत को कैसे देना है. बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं तो कहूंगी सुशांत सिंह राजपूत को बर्थडे गिफ्ट देते हैं. सिर्फ ये कहने से वरुण काम नहीं चलेगा कि एजेंसी काम नहीं कर रही, सरकार काम नहीं कर रही, मीडिया काम नहीं कर रही. फिल्म सरकार देखने नहीं जाएगी, एजेंसी देखने नहीं जाएगी, मेरे और आप जैसा व्यक्ति ही सिनेमा हॉल में जाएगा और 500 रुपए लगाएगा और फिर वापस इनको 100 करोड़ का व्यक्ति बना देगा. हम वो पैसा भी बचाएं और हम इनके फिल्म को सुपर फ्लॉप कराएं और उनको ये बताएं कि आपने भले अपना टीजर बुर्ज खलीफा पे दिखा दिया, आप भले जाके जगह जगह पे भीख मांग रहे हैं मेरी फिल्में देखो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कूल डाउन रहना है. बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स क्या कह रहे हैं, अभी 2-3 लोगों के मैसेजेस में पढ़ रही थी जिन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है, अब हमें आंसर बैक करने की जरूरत है, हमें अब बोलने की जरूरत है, हम बहुत ज्यादा टॉलरेंट हो गए थे. तो मैदान में आ जाओ, हम तो अपनी टॉलरेंस दिखा रहे हैं, आप अपनी टॉलरेंस दिखाइए और हम आपको बताएंगे कि हम असली एसएसआरियन हैं. देख वरुण, एक चीज बिल्कुल क्लियर कहूंगी, मैं सुशांत के केस के पीछे क्यों पड़ी रहती हूँ. एज ए एक्टिविस्ट, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, एज ए भारतीय, भारत की बेटी, एक चीज मैं बिल्कुल कहूंगी कि सुशांत का केस अगर सॉल्व होता है तो आज भारत में जितनी गंदगी से हम लड़ रहे हैं ना, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, अंडरवर्ल्ड हो, एनआईए की जो जांच बॉलीवुड में आए दिन चलती रहती है कि पैसा कहाँ से लाते हैं, ये एनजीओज में जो हवाले के पैसे आते हैं. होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे एनजीओज का एफसीआरए कैंसिल किया है क्योंकि एनजीओज भी पैसा लेके देश में बहुत कुछ कर रही है. ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. प्लीज अंडरस्टैंड, सुशांत सिंह राजपूत का केस सिर्फ एक केस नहीं है, सिर्फ एक एक्टर का मर्डर कर दिया गया ये नहीं है.
इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस है। मतलब आप सोचो कि हमारे यहाँ की कुछ मीडिया हाउसेस ऐसे काम करती आई हैं कि जो युवराज कभी राजा नहीं बन पाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी यात्रा निकाल लें, ठीक है, उन युवराज को भी राजा बनाने के लिए कैसे सालों साल दशकों तक हमारे यहाँ मीडिया हाउसेस ने काम किया है। राजा का बेटा राजा की गद्दी पे सिर्फ इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि वो राजा का बेटा है, अगर वो योग्य होगा तो ही बैठेगा, योग्य नहीं होगा तो नहीं बैठेगा। ये सुशांत सिंह राजपूत ने बताया है कि मेरे पिता फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आते, मेरे पिता किसी बड़े खान की तरह कोई कोई राइटर, कोई स्क्रिप्ट राइटर या कोई नहीं है, मेरे यहाँ दूर दूर तक कोई फिल्मों में नहीं है, फिर भी मैं बॉलीवुड का आइकॉन बना। तो सुशांत ने तो ऑलरेडी बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है वरुण। तो मुझे तो लगता है कि हम अपनी बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो बहुत छोटी चीज बताती हूँ। आज 21 तारीख है, 2-4-5 दिन बाद कोई फिल्म आ रही है, उस फिल्म को फ्लॉप कराइए, उस चाहे देखते कितनी पीआर एजेंसीज। मैंने तो एक वीडियो देखा, पता नहीं सच है कि झूठ वो, उस वीडियो में पूरा पूरा सिनेमा हॉल जो है वो कर्नल साहब बुक कराया जा रहा है, पूरी पूरी ऑडी बुक कराई जा रही है। मतलब टिकट्स भी बहुत सस्ते रेट पे दिए जा रहे हैं। अरे आप मैं तो कह रही हूँ सड़क पे चलते राह वालों को भी फ्री में बिठा के दिखा दो, चाहे कुछ भी कर दो। अब बॉलीवुड वापस, बॉलीवुड का जो पतन शुरू हुआ है वो बॉलीवुड नहीं पनप सकता, बॉलीवुड को बर्बाद हो। मैं कैसे मान लूं वरुण कि पूरे विश्व में एक व्यक्ति के लिए लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग इमोशनल हो रहे हैं, सिर्फ सुशांत का परिवार नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, लाखों करोड़ों लोगों के विशेष क्या बिल्कुल किनारे हो जाएंगे। मैं ये मान लूं कि भगवान है ही नहीं ब्रह्मांड में, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है ही नहीं, शिव जी है ही नहीं, दुर्गा माँ है ही नहीं, यही बॉलीवुड के कुछ 2-4 नेक्सस में काम करने वाले माफिया है, मैं तो मान ही नहीं सकती, मैं तो कभी नहीं मान सकती। और इन माफियाओं से ही सुशांत लड़ता आया है, और आज भी उसके जाने के बाद भी उसके केस में भी, चाहे मीडिया हाउस न बोल पा रही हो, चाहे लेट हो रहा हो। अरे हमने देखा है कि जो लोग सुशांत के केस में बोलते थे उनका क्या हाल हुआ है। हमने देखा है दफ्तर टूटने से लेके, जेल जाने से लेके, एक्टिविस्टों पे एफआईआर से लेके, जिस समय हम डिबेट करते थे एक एक लाइन पे ध्यान रखा जाता था, और हम लोग भी ध्यान रखते थे कि कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसी लाइन ना निकल जाए जिसकी वजह से हमारे ऊपर भी एफआईआर हो। हम रोज स्क्रूटनी हो, मतलब हम उस लेवल पे हैं जहां पे हम रोज एफआईआर हो सकती है। तो कितने बड़े नेक्सस से लड़ रहे हैं आप, ये तो सोचिए। जो लोग कहते हैं कि साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, केस नहीं, 70 साल से जो बॉलीवुड चल रही है, उस हमारे यहाँ बाय वन गेट वन फ्री पर एडवांस बुकिंग हो रही है। अब आप देखिए, मतलब वो चीनी नमक की तरह भी अगर टिकट बेचेंगे तो भी बॉलीवुड की फिल्में नहीं चलेंगी, बिल्कुल नहीं चलेंगी। बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा एक माफियावाद है, बहुत बड़ा आपने देखा है कि जब अच्छी फिल्में आती है तो हमारे यहाँ सिनेमा माफिया भी है। मैं तो जानती भी नहीं थी सिनेमा, मैं अगर बनारस से दिल्ली कभी आई न होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि सिनेमा माफिया जैसी कोई चीज होती है। फिल्में लगने नहीं देंगे, कोई अच्छी फिल्म है उसको नहीं लगने देंगे, उसको मल्टीप्लेक्स नहीं लेते हैं। तो माफियावाद सिर्फ अंडरवर्ल्ड या जो हमारे यहाँ बम फोड़ रहे हैं वही नहीं है, हमारे यहाँ तो व्हाइट कॉलर वाले भी है ना, तो व्हाइट कॉलर से भी लड़ना है। तो वो पॉलिटिशियंस या जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भी, या जो सुशांत का केस चाहते हैं सॉल्व, इतना आसान नहीं है वरुण। बहुत बड़ा नेक्सस है इसके पीछे, बहुत बड़े लोग हैं इसके पीछे। वो हमने देखा है कि किस तरीके से सुशांत पे बोलने वाला हर व्यक्ति या तो गायब हो जाता है, या तो मर्डर हो जाता है, या मार दिया जाता है, या रास्ते से हटा दिया जाता है। जैसे फिल्मों में दिखाते थे नहीं शुरू में कि कोई गवाही देने जा रहा है कोर्ट में, गायब कर दो उसको रास्ते से। सुशांत के केस में तो हमने ये देखा है, सुशांत के बारे में आप बोलिए, यू विल बी स्क्रूड अप। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े। ऐसे सारे से सिर्फ यही कहूंगी वरुण, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। ये जो आग है उसको जलने दीजिए, उसको शब्दों में सोशल मीडिया पे उतारिए, वीडियो बनाइए, सरकार से रिक्वेस्ट करिए, एजेंसी से रिक्वेस्ट करिए। अपनी मुहिम को हम ऐसे सारियन के तौर पे ठंडा नहीं होने दे सकते। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। जरूर आकाशवीर जी, और मैं थोड़ा टाइम चेक भी रखूंगा, तो प्लीज गो अहेड आकाशवीर जी, फिर मैं एक लास्ट राउंड सबके साथ करूंगा। एंड मीनवाइल आई विल आल्सो पिंग ममता जी बिकॉज़ आई थिंक शी शुड बी हियर एनी टाइम, बट लेट्स सी। प्लीज गो अहेड। हाँ जी आकाशवीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप म्यूट पे हैं। हाँ, नहीं, मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त मैं इस टीम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रीति जी को, RDS सर को, प्रशांत सर को। प्रशांत जी व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी ज़्यादा बात नहीं होती है। आप भी जुड़े हुए हैं। एक नाम था रविंदर पाटिल,
सब जानते हैं सब जा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सबको सबको मालूम है। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। बाद में पता लगा, 10-12 साल बाद पता लगा कि वो तो गाड़ी कोई और चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था। अरे यार, एक बात बताओ वरुण जी, अगर प्रीति जी की बात कोई नहीं सुन रहा है, आरडीएस जी की बात कोई नहीं सुन रहा है, प्रशांत की बात कोई नहीं सुन रहा है, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, यार मेरी बात कौन सुनेगा? मैं तो अदना सा आदमी, पूरे दिन में कुछ थोड़े बहुत ट्वीट रिट्वीट करता हूं, पोस्ट को लाइक वाइक करता हूं। मैं हूं कौन? मैं तो कोई मायने नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो इस देश का साधारण नागरिक हूं। मैं करूं क्या करूं? और इस बात में भी कि मैं वरुण के ग्रुप का आदमी हूं या नहीं हूं, इस पे भी विवाद होता है। तो मैं तो आज केवल जुड़ा केवल इसलिए, सबसे पहले जब मैंने आज सुशांत के दिन पे ट्वीट शुरू किए तो मैंने आपको टैग नहीं किया, माफी चाहूंगा। किरदार प्रोडक्शन गंभीर गंभीर को भी मैंने टैग नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि इस पे भी कोई विवाद खड़ा हो जाए। यार पहले तय कर लो मैं वरुण के गैंग का हूं या नहीं हूं। इट्स ओके, ये टॉपिक तो चलता ही रहेगा। वरुण का गैंग तो कुछ नहीं है, हम सब सुशांत के गैंग के मेंबर्स हैं। आई थिंक जिस दिन सबको ये समझ आ जाएगा ना, आई थिंक उस दिन आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। बट एनीवेज, समझते हैं आकाश जी, आकाशवीर जी, यू नो ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स मैं तो बूढ़ा चलती रहेगी। भाई, मैं बूढ़ा आदमी, 54 साल की उम्र हो गई है और मैं देख रहा हूं इस केस में हो क्या रहा है। और जो ये नरेंद्र मोदी है अपने प्रधानमंत्री, उनको ये केस दिखाई नहीं दे रहा है, या योगी आदित्यनाथ के पास ही आए थे बॉलीवुड वाले, इनको नहीं पता लगा कि ये ड्रामा क्या है। मेरे लिए आश्चर्य की बात है, ये लगभग आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी को इस केस का पता नहीं है। सीबीआई उसके अंडर ही आती है, पीएमओ के अंडर आती है। सीधा सवाल है नरेंद्र मोदी से, तुझे वोट की थी इसलिए नहीं की थी कि किसी के साथ भी कोई अन्याय हो। मेरा सवाल केवल इस बात के लिए नहीं है कि उसके साथ गलत हुआ है, किसी के साथ भी गलत हुआ हो, पूरी दुनिया में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में किसी के साथ भी गलत हुआ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हें उसके लिए न्याय करना चाहिए। और तुम्हें ये टैगलाइन, मतलब टैगलाइन दिखाई नहीं देती? अरे डेली टैगलाइन में मैं टैग करके तुम्हें रोज 1000 ट्वीट तो भाई रोज करता हूँ, डेली करता हूँ। मेरे हो गए 1 लाख कितने, 1,50,000 से ऊपर। क्या करूं मैं? अगर मुझे उस आदमी के लिए न्याय चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम मुझे बताओ। एग्जैक्टली, आई थिंक यही क्वेश्चन है सारों का कि हम किस तरह से, और आई थिंक कर्नल आरडीएक्स ने भी इसको थोड़ा एड्रेस किया था, एंड आई लव टू, बल्कि अच्छा है आपने ये यू ब्रॉट दिस अप। मैं कर्नल को, प्रशांत दोनों को और फिर प्रीति जी को भी कहना पूछना चाहूंगा कि यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, एंड यू ऑलरेडी आंसर्ड इट इन बिट्स एंड पीसेस। एक बार फिर जस्ट टू काइंड ऑफ रैप दिस अप, क्या करें? व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप्स? बॉयकॉट बॉलीवुड? यस, फुल स्टीम चलना चाहिए, चलेगा। उसके अलावा क्या? तो कर्नल, आई विल स्टार्ट विद यू एंड योर सजेशंस, योर व्यूज। एंड सॉरी इंटरप्ट करूंगा। ये मैंने 2020 में कहा था, जून तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अगस्त या अक्टूबर के आसपास मैंने कहा था इसको बॉयकॉट बॉलीवुड करो। ये बॉलीवुड वाले जितने हरामजादे हैं, वो अमिताभ बच्चन हो, जया भादड़ी हो, ये सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी लोग हैं, इनको बॉयकॉट कर दो। यार मेरी वीडियो देख लो, मैं बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ। मैं वहां पे आता था फोकट फिल्म से, संदीप के पास, मेरी वीडियो चेक कर लो। मैंने बोला था कि इनकी फिल्मों को बॉयकॉट कर दो, इनकी औकात सामने नजर आ जाएगी।
Right, right. हैं? Yeah. तो ये बात मैं पहले बोल चुका भाई, मैं 2 साल पहले बोल चुका। अब कितनी कितनी बातों को बार बार मैं रिपीट करूं, मेरी समझ से बाहर है, Yeah. और So मेरी सुनते आखिरी हैं, उम्मीद है ये। हाँ सुनते हैं प्रीति जी, कर्नल, इनके सजेशन। और लेट्स ऑल बी वेरी माइंडफुल अपने वर्ड्स के ऊपर। थोड़ा सा गुस्सा सब में है, एंगर, मतलब यू नो वी ऑल गेट एंग्री, बट अभी सब नहीं, प्रीति जी ने भी बोला था, कर्नल ने भी हमेशा बोला है, हमें जो भी बात करनी है हम ऑब्वियसली विल यू नो डोंट क्रॉस दैट लाइन। सो प्लीज कर्नल आपसे शुरू करते हैं, देन विल गो टू Yeah. प्रीति एंड So, सुशांत। Varun, there are few things. The first part which you asked me earlier was about what should people do to carry this team ahead. Yeah. And people are weaning away and they're getting tired. I think you see, people must realize two or three things, and that's where the power of social media comes in very effectively. Is that you had the character to stand by this case. That's part one done. You had the conviction to pursue this case. So you stood and you came for movement, you talked, you tweeted, you went for protest marches, you wrote letters, you went on social media debates, you went on TV debates, picked up cut with the Mumbai police. So conviction. And that conviction gave you the will to take that action that time. So I don't think so that anybody should lose the first two, the character and the conviction. Will dwindles a little bit, because you have this passe, this period in which you see no fructification, you lose hope, and there are many people who will lose hope in this going ahead as well. But I don't think so that should worry anybody or worry us to take the moment ahead, because with each step, today social media is a very powerful tool, and social media allows you to rekindle issues and matters. The same evidence, say if it's of that leg being bruised, I don't know in a day on average how many times do you see it, but there's quite a good chance that you see it 2 to 3 times in a day if you are regular on Twitter, and maybe once if you're scrolling very less in a day. So that's the frequency and that's the power of social media. And like the previous speaker was saying that he has been making videos and going out and talking about it. That's the way to take it ahead. So everybody can influence. So today, say you want to take this message ahead of boycott Bollywood. I will not say that we should all do boycott any Bollywood directly. Just hear me out what I'm saying. There are certain good movies which happen to the same agency. Maybe they don't have that same connect going back, so nobody can check it. But you had that one movie which is based on Kashmir Files, right? I heard that it's a pretty good movie. I read about the script, but unfortunately, I don't see movies. So for me, it's not about boycott Bollywood. I've never been there actually, but you will have to have that sense that India also needs in this particular year of 2023, going to the elections next year. India also needs in the next 15 years, 20 years for the next generation to come up as bureaucrats and take the mantle. India needs to revisit its history, and the history can also be, fine tuned through this same agency called movie making houses. So we'll have to be very mindful that what you want to boycott and what you don't want to. But yes, like Pritiji was saying, that there are certain people who think they've grown too large for their boots. Yes, there is a time to show them the place, and the best time is not going for their shows or whatever. That's okay. That's a good thing, and you can actually ignite this. If Preeti ji tells 30 more people in our locality, I'm quite sure 30 more people will not go. Same for any one of us here. If we talk about it, they'll be not going. And you need not message. There are two ways of writing it. Tomorrow morning, I can get up and say, boycott movie X. That's one meaning, right? Or I can simply say, I am not going to watch this movie. Now, when I say I'm not going to watch this movie, and like he said, he's a nobody. Even we are nobodies. They're bigger buddies. Who have much more fan following. So if people say I'm not going to watch this movie, it's a statement of fact that you are not going. If that influences more minds for not going, I mean, it's just too good or bad for either case. But what's happening today is that people are picking up, these taglines negatively. So while you are positive to carry forward a mission of, say, boycott Bollywood today, there are on the other side people who are also propped. So there are prop people who are called fans of so and so. There's a huge kind of fan following with every star, politician, celebrity, everywhere else, and those people are, you know, absolutely like she mentioned that you will get all freebies, 1+1, or you will get
a T-shirt sign or some souvenir sign. All this will happen. These are all marketing gimmicks to make sure that you make the correct revenues from the investment you have made in that movie. But yes, today India has reached a stage, and we have not done it only once. We have seen it over the last 1.5 years, 2 years, that the movies at which the people went at not to see, the movies at which people said you should not see, those have not made the remuneration they were thinking of in terms of revenue for that movie. So I think that's one line. Coming on to what we should do in the future, I'm quite certain that there are many more people who have joined this movement in a very, you can calculate those numbers probably if you want to. Probably, you are in US, just write to Twitter and just get a small kind of a RTI going there to get the data correct, that what has been the motion of this entire movement, not committed to any one channel or otherwise, but as a topic. And you will find that people are joining in. And today, one has been going to a lot of these colleges to talk to young people willy-nilly. Somehow these topics come up even at college level. Even if you're not talking about geopolitics and you're interacting over tea, somebody will come and ask you that, I saw your views on X issue pertaining to Bollywood or Sushant Singh, whatever. So people are liking that topic to grow as teenagers, which is good. So that means that today you have somebody who's 70 75 years of age understands this issue. Today you have somebody just gone to college at 19, he or she understands the issue. So the entire spectrum you're covering is a spectrum of 50 years of age or 60 years of age, where people are getting influenced by this cause, by seeking justice. So it is very important to get this entire connect through first. Like I said, that when we started 2 years back, you must have made, an influence on, say, 10,000 people initially to start with in that first quarter. Your influence must have grown as a current channel to maybe about 2 million now, right? People see you in various formats. So once you have made this base is for the next stage or the next cause as well. So our endeavor should be to keep enhancing this base with the current cause, and as we get more causes, it should further, solidify and enlarge this base of people who are committed to thinking rationally for humanitarian issues, for livelihoods, for societal issues, for betterment of and refinement of people's ethics and things like that. So this is the cause we are at, and I think that their social media plays a long role. You should all try to influence and interact with people who come on your handles. So I mean, it's very difficult to interact with everybody through the messaging mode, but every day make sure that whatever you are writing for a cause, if you're writing, it is sensible, it does not get into a legal tangle, but at the same time, it catches the right mindset people to come and join that movement. So get more people onboarded. The second part is the legal part and the protest part and the occasions where you have to go and speak on media and otherwise. That must continue. That can never stop. That can never stop because single-handedly Twitter, there was a time when I was in one of the debates with you when we were talking about how should we ban Twitter, right? And if you remember, Varun, I told you that it's not for us to go away from a platform. No matter the bias of that platform, it's left, right, center, or extremes, you should be there, because if you're not there finally, then a different kind of a sort of a charade, a sort of a propaganda is created, and then that is sold to mainstream media, mainstream geopolitics, mainstream polity, mainstream economists, mainstream institutions of the world, and that is how the collective wisdom gets a little smudged, because people then take it upon themselves that whatever they are saying is good to be done. So it's very important not to leave platforms. And there are people who keep threatening every time. Even on this issue, I see that if this is not done by the Prime Minister or somebody else, then I will leave this platform. Why leaving the platform? If this is not done, that is not done, I will not vote for you next time. I mean, have you ever wondered how much is the point of evidence in a legal case? The sheer word evidence decides legal cases. Emotions play a role in taking a case till a particular level. The movement to keep it alive is a collective wisdom to have a societal change. But legal has to work on legal. And yes, when you say what are the factors which oppose the legal conduct of a case, what delays them, what derails them, how money influences, how power influences, it's part and parcel of each case. So should we get disheartened? मैं तो मतलब इतना बोलना चाहूंगा वरुण that ये जो जो पूरी जो हमने ये किस्सा देखा है अपने सामने आंखों देखा, इसने अगर आपके दिल को झंझोर के आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आप इसको
आगे ले जाने का पहल करना चाहते हैं, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको बोले कि आप अब चुपचाप बैठ जाइए, कि आपने बहुत सफर कर लिया है, आगे का सफर कठिन है, कठिन में आप नहीं जाएंगे। आप अगर आप सुशांत को एज इंडिविजुअल भी लेते हैं, तो वो सुशांत किसी परिवार का था, किसी दोस्त घराने का था, बट वो सुशांत तो आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकता था, हमारे परिवार से हमारे दोस्त या हमारे किसी घर से कोई लोग हो सकते थे। सो अगर आप उस नजरिए से देखें, तो ये पूरी ये जो कार्यकाल हमने देखा है 2-2.5 साल का, इसके अंदर आप किसी भी एजेंसी को, किसी भी मीडिया हाउस को, किसी भी बॉलीवुड टॉलीवुड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को या सरकार को आप किसी कटघरे पे इस तरह से लाके ना छोड़ें कि अगर आपने इसका डिसीजन 2023 अक्टूबर तक नहीं लिया तो नवंबर में वोट किसी और को कर दूंगा, या 2024 के मई में जब इलेक्शन होंगे। ये नहीं हो सकता, बिकॉज देश की प्रोग्रेस अलग है, देश का रुख अलग है, देश की कैपेबिलिटी, क्षमता, नेशनल पावर अलग है। और ये केस क्योंकि चल रहा है 2.5 साल तक, यही बहुत बड़ी बात है कि जो नागरिक हैं, जो डायस्पोरा है, आप डायस्पोरा को बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पे जो नागरिक है जो रहते हैं, ये दोनों चला रहे हैं इस केस को। और कौन बोलता है कि केस दब रहा है और किसी को पता नहीं है? जो मैं सहमत हूं साहब के पॉइंट से कि अगर सीबीआई के पास केस है तो प्रधानमंत्री को केस का पता ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट दखलंदाजी कैसे करनी है, लैक ऑफ एविडेंस एविडेंस, ये एक प्रधानमंत्री को मेरे ख्याल से तो करना ही नहीं चाहिए। उनका काम कुछ और है। ये करने के लिए न्याय मंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, सो एंड सो फलाना ढिमकाना, बहुत लीगल रिकोर्सेज हैं। लोग जो कि 12:30-1 बजे उठ के रात को एक टेररिस्ट के लिए पिटीशन कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये केस भी हम उस तरह से कर सकते हैं। और लोगों ने ऐसा कि नहीं किया, लोगों ने किया है। somebody has pushed the pedal till so long that it is still holding good in the legal part and there are evidences emerging. आप देखिए, एक सरकार चेंज हुई कहीं पे महाराष्ट्र के स्टेट में, उसके बाद भी इतना समय लगा उस एक कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी वाले को सामने आके एक अप्रूवर बनने के लिए, बोलने के लिए, जो उसने देखा आंखों देखा। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा समय और देना पड़ेगा, क्योंकि जिस डर से लोग सहमे हुए हैं या जिस लोभ से लोग बिके हुए हैं, ये दोनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं अगर इंसानियत जागती है या आपके मेरे जैसे लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और मैं नहीं कहता कि हम डायरेक्टली करेंगे, हो सकता है कि उनके घर परिवार के कोई बोलें। मान लो एक आदमी था, उसने पैसे के लोभ में तथ्य दबा दिए, बोला नहीं, अभी उसको क्या गारंटी है उस आदमी को कि वो सेम जो लोग थे जिन्होंने किसी और का कत्ल किया, टाइम आने पे इसका भी नहीं कर देंगे? क्योंकि ये एक एक विटनेस है, इज आई विटनेस। मैं तो बार बार लोगों को बोलता हूं, सोशल मीडिया में आप लोगों को अप्रूवर होने के लिए समझाएं, डराएं, क्योंकि आप जो भी केस देखें, चाहे वो आप मध्य प्रदेश का केस देखें पॉलिटिशियन का, या 4-5 और केस देखें साउथ में, आप कहीं भी देखें, जिस तरह से विटनेसेस आर एलिमिनेटेड, this fear should be created in all the eyewitnesses at a personal level, social media level, so that whatever that Cooper Hospital person has done now, it becomes a normal thing to happen in the next few months at least, so that the case can take a turn based on eyewitnesses. Because जो विटनेस का जो एविडेंस का काम था, चाहे वो घर में हो चाहे अस्पताल में हो, उन्होंने बखूबी स्पेशलिस्ट लगा के, और मेरा तो ये मानना है कि सुपर स्पेशलिस्ट लगा के वो एविडेंस मिटाए गए होंगे, बट बॉडी के जख्म, बॉडी के एविडेंस हटे नहीं। जो लोग इनको लेके गए फ्रॉम स्टेप 1 हाउस नीचे मॉर्चरी वैन में लेके, ये कुछ डिस्टर्बेंस आ रही, मेरे को आ रही है कि सबको आ रही है? मुझे भी आ रही है। एनीवे, सो जो भी इस सिलसिले में जो लोग हैं, मेरे ख्याल से बहुत अप्रूवर हैं। एक आदमी होता था, मुझे नाम याद नहीं है, यंग सा था, जो कि इनकी सिस्टर के साथ, मैंने बहुत पहले देखा था, उनके साथ चल रहा है और किसी को कुछ इशारा कर रहा है कि जैसे कि काम हो गया। वो जो भी, हाँ, वो जो भी लड़का है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पीपल आई सी, बिकॉज मैं फौज में बहुत लोगों को देखा है, वो एक टिपिकल कॉन्डुइट है जो इस केस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज लेके बैठा हुआ है। उस आदमी को खुद डर लगना चाहिए कि जहां अभी तक चला है उसको भी कोई टपका सकता है व्हेन इट कम्स टू पुश, राइट, बिकॉज ही इज अ विटनेस। सो आई थिंक ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है कि विटनेस हो के पैसा कमाना या डर के रह जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको कभी ना कभी खुलासा करना चाहिए। सो आई थिंक लेट्स encourage that. And last is that, for all the young people who are associated, you must carry this in your heart as a cause, a societal cause.
right? Whether it is finally proven in a court that it's a murder, yes, it will be proven someday. Whether people go behind bars or it was lack of evidence, which finally somebody says is something else. Whether there is a petition or a repetition happening in this case is a different issue. But look at from a perspective of a societal cause, that a person who was making his, say, livelihood and living a dream of his passion, right, with all the skill sets to do more, with all the philanthropic heart in himself to do more for the society, for money, for power, for the domination in a particular industry, he was taken out ruthlessly. This is a messaging which can happen in any walk of life, any industry, but this is coming to more prominence because it is more visible today, and people can relate to it. So I will only exhort all the young people. मैं चाहूंगा कि जितने हमारे जो युवक हैं वो इस मुहिम के साथ और जुड़ें, और वो जो जो लोग जो यहाँ इस स्क्रीन पर हैं, स्क्रीन के पीछे हैं, जो काफी बार आपके शोज में आए हैं, काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनके साथ मिलें, समझें, और इस पूरे केस को अपने साथ लेके चलें, इसको नरम ना होने दें। और मैं नहीं कहता कहीं कोई दंगा फसाद कहीं तोड़फोड़ करने की जरूरत है। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्वाइट बिकॉज justice will happen so long as there is evidence. Unfortunately, there is lack of evidence, but there are enough of eyewitnesses. And I think legally the case hinges there. It will come to the forefront, it will get resolved, and hopefully we will see, at least in our lifetimes, this justice happening. No matter if the culprit is named or it's still anonymous, we don't come to know through this inquiry. But certainly that flaunted stigma which was put on that kind soul by calling it as weakness, depression, suicide, that is something which needs to be put back at the face of those same mongers who were trying to ridicule that great soul. That is the fight which I think is the fight, because you cannot allow the shameless to put a you know mask of shame on a soul which is not there to defend itself. That is something which is below the belt, if you ask me. And that is one thing which is most hurtful to me, that you have name and shamed a person who firstly can't defend, and you have done so blatantly against all the current evidence as well. Yes, it's a different thing to prove in a court, right? Because if witnesses are not produced, how will a case go on? If you destroy evidences, how will the case go on? But to demean that identity of an individual, a young, dashing, soulful, lively person, is something which is most hurtful to me personally, because I don't want that kind of a charade and a stigma to be imposed on somebody when he not only didn't deserve it, but he at least deserved today your tribute, at least to him, to finally acknowledge that he was at least better than you, if not that he was part of you. So if you don't have that heart, but you want to maintain the charade of maligning somebody, that is the most hurtful thing. And that is where the next generation should be very mindful, that not only can you be eliminated, but you can be bestowed, and with your family would have to live, or your friend would have to live with that maligned kind of a label that you committed suicide. Back in my days in the army, suicide, if you had a case of suicide, it's a big thing today. It's a big thing because of depression and various psychological issues. But if you committed suicide in the army, your family did not get the benefits of regular pension and things like that. It was considered such a taboo in the army. It still is. It still is. And you are labeling that person who has, like somebody said about a meta visionary, who is thinking of many things, who is thinking of doing many things, who is thinking not only of doing, but also helping many millions people, in the days to come. And a person full of so much of life, so much of, an idea of reading and gaining knowledge. You are trying to portray him after his death by swinging three cheap stunt people coming on national television and trying to showcase it as a weak mind. That is where I have problem with this case to start with. I don't have a problem with lack of evidence, because yes, you are a murderer, you will remove evidence. It's a tough challenge for even a CBI to get the evidence, but there the hope is the approvers. But the bottom line is, let no individual, a young citizen of this country, meet the same fate of death and then getting maligned thereafter. That is something which every citizen should know, and they should live up to it and stand with this case, because this case will bring in the resolve
to tackle more such and diverse cases which are of more societal significance in the years to come. So there is no running away. No youth can run away. If people like me with 50 approaching and people with 70 sitting here are here, a person with 25 years of age and knowing the case has no business to turn the other side. Perfect. You just summarized the entire case, entire stuff for all of us. Thank you so much, Colonel. I will definitely have Preeti ji end this session, but I'm gonna go to Prashant, और उसके बाद I'll come to Anam and Ayush too. Prashant भाई, so based on अभी जो हमने सब सुना इसका अगर आप एक synopsis निकाल के हमें समझाएं और बताएं आपके हिसाब से, that'll be also great. So please. सबसे पहले तो मैं हार्दिक सर को धन्यवाद दूंगा कि इतना सारा कुछ बहुत कम समय में सर ने बता दिया, समराइज कर दिया देश के युवाओं को, हम सब लोगों को। और बात बिल्कुल सही भी है, जैसे आकाशवीर जी कह रहे थे कि उन्हें गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनती। आप देखिए कि 3 सालों में बॉलीवुड वालों ने कितना कुछ खोया है और कितना कुछ लगाया है, फिर भी खोया है। मतलब मैं कहीं सुन रहा था 17,000 करोड़ का लॉस सिर्फ फिल्मों से लगाया हमने। और आप सोचिए कि हम सब ने शायद 17 रुपए भी नहीं लगाए हैं अपने जेब से, और फिर भी हमारा झंडा ऊंचा है। हम सब ने सिर्फ इतना किया है कि हमारे दिल में एक आग लेकर हम आगे बढ़े, और वो आग आज भी चल रहा है। इससे क्या क्या हुआ आप एक बार ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र की सरकार गई, सोचिए एक सिर्फ लड़का, सुशांत जैसा लड़का, और उसके कारण महाराष्ट्र की सरकार चली जाए, ये कोई आम बात नहीं है। और सुशांत के कारण ही बहुत सारे लोग हम इकट्ठा हुए, सुशांत के कारण ही आज वहां की सरकार गई। सरकार बचाने में बॉलीवुड के जितने सारे लोग कूद पड़े थे कि हमें यही सरकार चाहिए और इसके लिए हम किस हद तक भी चले जाएंगे। वो इस पर्दे के पीछे की कहानी शायद आप सब इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि जब सरकार जा रही थी और सरकार को जाने के लिए जब ये सारे लोग लगे थे और सब लगकर भी इसे बचा नहीं पाए, फैसला हमारे हाथ में आया, हक हमारे हाथ में आया, और उसी का नतीजा है कि आज हमें छोटी बहुत थोड़ी थोड़ी सही करके एक एक चीज अच्छी सुनने को मिल रही है। अब रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट, जैसे सर ने कहा कि डायरेक्ट कभी इंटरफेयर नहीं कर सकते इन सब मुद्दों में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, उन सबको पता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ है। जैसे हमें आपको पता है वैसे ही, लेकिन हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसके बाहर कोई नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री आज कितनी मेहनत करके प्रधानमंत्री बने हैं, और इसे हम सब नहीं समझ पा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि बस प्रधानमंत्री आए और 2 मिनट में देखें कि भैया ये गलत हुआ, इसको हटाओ यहाँ से। कि देश में ऐसे कई सारे केसेस, कई सारे मुद्दे पेंडिंग में हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सही क्या कहते हैं सो एविडेंस नहीं मिल पाए, हाथ नहीं लग पाए। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि अब जैसे राम मंदिर को ही आप देख लीजिए, राम मंदिर को बनने में कितना समय लगा। आप सोचिए कि कौन नहीं चाहता था, प्रधानमंत्री हो या फिर जितने भी हमारे देश के देशभक्त हैं, कौन नहीं चाहता था कि राम मंदिर जितनी जल्दी हो सके बन जाए, लेकिन फिर भी सालों का समय लगा। तो राम जी जो सबके प्रिय हैं, उनके लिए सालों का समय लग सकता है, तो सुशांत भी कहीं ना कहीं वैसा ही एक मुद्दा है। और अभी तो महज 3 साल हुए हैं, आगे आगे देखिए, अभी बॉलीवुड को लॉस लगा, बॉलीवुड पूरी तरह से बिक गई। मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन बॉलीवुड ये 17,000 करोड़ और 20,000 करोड़ जैसे लॉस में आज जा रहा है, और फिर भी पैसे लगाए जा रहा है, क्योंकि ये बाहर के पैसे हैं, दाऊद के, कबाल के, अलग अलग जगहों से आए पैसे। अगर हम सब लोगों ने 1 करोड़ भी कहीं लगा दिया बॉलीवुड के खिलाफ, तो बॉलीवुड पूरी तरह से सो जाएगी। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है किसी एक पैसे को भी लगाने की, हम सिर्फ अपने आप में ही काफी हैं। जैसे सर ने कहा, आकाश सर ने कि 1.5 लाख ट्वीट हमने किए, तो ऐसे आप जो हमसे बड़े हैं और जो हमसे छोटे हैं, जब भी कुछ ऐसा करते हैं सुशांत के केस में जो बहुत अच्छा हो, तो हम उनसे सीख लेते हैं। आप जैसे लोग हमारे इस केस में गार्जियन जैसे हैं कि भाई ये इतने हिम्मत करके अपना समय निकाल के सुशांत में इतना समय दे सकते हैं, तो हमें इनसे सीखने की जरूरत है। और आप जैसे लोगों को तो सर बिल्कुल धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमेशा डट के आगे रहना चाहिए। आपसे हम सच में सीखते हैं। अगर कुछ खास वॉरियर्स का नाम आता है हमारे जहन में, तो वो सब आप लोगों का नाम है। तो मैं तो कहूँगा आप जितना भी कुछ कर रहे हैं बहुत है, और बस इसी को कंटिन्यू करते रहिए। जैसे राम मंदिर को
बनने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आज बना वैसे ही। सुशांत को न्याय मिलने में भी थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। और उस समय के योद्धा हम सभी होंगे, जितने भारत वासी हैं वही होंगे। और बॉलीवुड तो खैर हम सब उसको पूरी तरह से बाइकआउट कर ही चुके हैं। बस इतना है कि हम अपनी समझदारी से काम करें। आज मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितना भी मैंने इन्वेस्टिगेशन अपने हद से किया या अपने लेवल पे किया, उसमें सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया अगर किसी ने, तो ये भी बॉलीवुड के ही कुछ लोग थे। लेकिन ये लोग वैसे लोग नहीं हैं जिनको सारे लोग जानते हैं। ये लोग वैसे लोग नहीं हैं जो हमेशा टीवी पे पर्दे पे रहते हैं। ये लोग वैसे लोग नहीं हैं। आज भी मतलब 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं बॉलीवुड के जो कनेक्टेड हैं और कई सारी चीजों को आपस में शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो वो लोग भी सोचिए, बस एक डर है, एक लेयर है डर का जो धीरे धीरे करके निकल रहा है। तो वो डर है, बस इसके कारण वो डायरेक्ट सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन आप जैसे लोगों को देखकर वो सुनते हैं। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं छोटे छोटे, उनको देखकर वो सुनते हैं और वो खुलकर फिर आते हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी कुछ बताना है, मुझे भी कुछ कहना है। बस एक लेयर जो चढ़ा है, वो लेयर हम सब तोड़ने का काम कर रहे हैं पूरे। आज अगर हम हजारों में हैं, करोड़ों में हैं, तो यही काफी है कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दे सकें कि देखो हम क्यों बॉलीवुड के खिलाफ थे, हम क्यों सुशांत का न्याय चाहते थे, हम क्यों भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। भले ही कितना भी देर लग रहा था, भले ही जो भी वक्त लग रहा था, ये मैसेज हम कल को दे पाएंगे 2 साल 4 साल बाद। तो हमें बिल्कुल पेशेंसफुली काम करना होगा और अपने अंदर जो जो आइडियाज हैं, जो प्लानिंग्स हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करना होगा। और बस यही हमारा एक मुझे लगता है ध्येय होना चाहिए केस को आगे ले जाने का और न्याय पाने का। बिल्कुल। थैंक यू प्रशांत भाई, एंड एज यूजुअल वेरी इंस्पायरिंग। और बहुत जल्दी और एक्सटेंडेड सेशंस हम करेंगे, सेम विद कर्नल। एंड सो आई क्विकली टेक अनम एंड आयुष, और उसके बाद वील एंड विद प्रीति जी। आयुष, प्लीज गो अहेड। या आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो मैं अपनी बात, आज सुशांत सर का बर्थडे है, तो मैं उनके प्रेजेंट है उनके लिए गिफ्ट, छोटा सा कोट है। आपके जन्मदिन पर हम देते हैं ये दुआ, आपके जन्म पर हम देते हैं ये दुआ, खुशियाँ आपके दामन से कभी ना हो जुदा, खुदा की रहमतों में कभी कमी ना आए, आपके होठों की ये मुस्कुराहटें न जाए। तो लव यू सर एंड सभी को कि आपने इस मोमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मैंने भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया कि मैं इस पार्ट बन पाया, आप लोगों के साथ जुड़ा। कर्नल सर हुए, प्रीति मैम हुई, प्रशांत भाई हुए, ये इन सब से किस तरह से क्लोज हो गया इतने समय में, खैर ये तो क्या ही कहा जाए। थैंक यू। थैंक यू आयुष। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, एवरी वॉइस मैटर्स, एवरी सिंगल ट्विटर पे हो, सोशल मीडिया पे हो, चाहे ग्राउंड पे हो, एवरी इंडिविजुअल मैटर्स। सो थैंक यू फॉर बीइंग a strong part of this movement. All right, Anam, please go ahead. Hi Varun, hi everyone, Namaste Preeti ji, Prashant and Khanat ji. I'm here because of Varun. He knows me that he gave me the strength and the ability to fight for justice for Sushant, and आज उसका birthday, so I had to come live. And I'm hearing some some negativity around Varun, and I just couldn't stand it. But I'm always with Varun because of him I'm in the movement. I cannot stand any negative. I don't know why some people want to ऐसे सारियों को बांटना चाहते हैं, but we should not let them because that's going against a movement. But we should always be focused. हमारा एक ही फोकस होना चाहिए कि 302 मिले सुशांत के केस में। हमने शुरू से इस जंग में लगे, एंड वक्त तक लड़ना चाहिए कि हमें 302 मिले, तब जाके हम शांत बैठेंगे। हम उससे पहले शांत नहीं बैठना चाहिए। तो बस इतना ही है कि वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हेल्प एंड गिव ईच अदर मोटिवेशन दैट वी विल गेट 302। जस्ट हार नहीं मानी, क्योंकि हमें फैमिली को हमेशा याद करना है। जब कोई थोड़ा बहुत ढीले होते हैं, बस इतना करना है कि हमें याद करना है कि फैमिली भी हम उनके साथ चलना है। तो बस इतना ही हमें ये प्रार्थना करना है कि 302 मिल जाए। थैंक यू सो मच वरुण। All right.
थैंक यू अनम एंड आज आज के लिए इस टॉपिक को छोड़ते हैं, कल से बात करेंगे इसके बारे में. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम आई हैव सीन पीपल लाइक कर्नल ने तो एक्सप्लेनेशन भी दी थी ऐसी चीजों के बारे में. हमने उनको डायरेक्टली सेशंस पे क्वेश्चन पूछे थे कि किस तरह से ये ट्विटर और ये सोशल मीडिया की जो लोग अब्यूज करते हैं, ट्रोल करते हैं उनका. सो वी आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट. बट एट द सेम टाइम आज के लिए इस टॉपिक को साइड रखेंगे, कल से इन सबको जवाब देंगे in Preeti Pandey style. But let's go back and let's wrap it up with Preeti ji. Please go ahead, Preeti ji, and tell us. वरुण जी, प्रशांत ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया राम जी का. जिस देश में खुद प्रभु को 500 साल लग गए अपना ही मंदिर बनवाने में और ये सिद्ध करने में कि मैं कोई काल्पनिक नहीं था, मैं वाकई था. मैंने इस धरती पे जन्म लिया, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, मेरा परिवार वहां रहता था, मेरे माँ बाप वहां रहते थे. जो इस देश में ऐसे नालायक लोग हैं जो प्रभु की ही, भगवान ईश्वर की ही एग्जिस्टेंस को मिटाने में लगे हैं. तो मैं, आप, सुशांत, प्रधानमंत्री जी, मतलब हम तो लगता है कि हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जो फाइजर की वैक्सीनेशन आई तो हमारे ही देश में लोगों ने, हमारे साइंटिस्टों पे, चलिए आप प्रधानमंत्री को पानी पी पी के गालियां देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन साइंटिस्ट, प्रधानमंत्री जी ने लेबोरेटरी में जाके खुद दवा नहीं बनाई थी. वैक्सीनेशन जो बनी थी भारत में वो हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की वो एक हमारा उनका इन्वेंशन था, राइट. जब पूरे विश्व में महामारी थी तो भारत ने ही दवा जो है संजीवनी बूटी के तौर पे पूरे विश्व में दिया. हमारे ही देश में बैठे लोगों ने हमारे ही लोगों पे क्वेश्चन उठाया, और ना सिर्फ क्वेश्चन उठाया, हमारी वैक्सीनेशन में 50 तरह की कमियां निकाली. अब जब फाइजर के सीईओ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, 3 दिन से मैं देख रही थी, तो मैं तो गर्व से कहती हूँ कि बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने भैया भारत में बनी वैक्सीनेशन लगाई. ठीक, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि किस तरीके से भारत, सुशांत को एक सेकंड के लिए साइड रखते हो, मैं ये बोल रही हूँ कि भारत को किस तरीके से पीछे करने की, और भारत के पीछे लोग पड़े हुए हैं. सिर्फ इंटरनेशनल लॉबी है, इंटरनेशनल लोग नहीं, भारत में भी बैठे लोग जो भारत का ही खाते हैं, भारत में ही पीते हैं. ऐसे हम बहुत सारे लोगों को तो कह देते हैं जिहादी माइंडसेट के हैं, ये हैं, इनको पाकिस्तान भेज दो. लेकिन जो इस माइंडसेट के नहीं है, जो अपने नाम के आगे पांडे भी लगाते हैं, कपूर भी लगाते हैं, और भी चीजें लगाते होंगे, इस तरह के लोगों की भी बात मैं कर रही हूँ. तो अगर हमें हमारे ही देश में मंदिर बनने में 500 साल लग गए, एक डॉक्यूमेंट्री आई है, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको आज भारत सरकार ने बैन किया यूट्यूब पे कि आप नहीं दिखा सकते. यूके से मुझे 2 दिन पहले आपके ही ये सुशांत के रेवोल्यूशन में मुझे एक बहुत प्यारी सी महिला है, उनसे मेरी मुलाकात ट्विटर पे हुई थी. उन्होंने मुझे एक मैसेज किया ट्विटर पे 2 दिन पहले कि यहाँ यूके में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री जी की और देश की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है. तो सुशांत के पीछे लोग पड़े हैं, उनका केस नहीं सॉल्व होने दे रहे हैं, एक लॉबी, नेक्सस, माफियावाद चल रहा है. ये तो बहुत छोटी बात हो गई जब हम प्रधानमंत्री जी की बात कर देते हैं, और जब प्रधानमंत्री के पीछे लोग पड़े हुए हैं. हम तो बार बार उम्मीद प्रधानमंत्री की तरफ कर रहे हैं ना कि भैया मोदी जी को नहीं दिखता कि इतने सारे टैग चल रहे हैं, ट्विटर पे चल रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं. भाई साहब वो तो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. तो सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी आज की, हमें अगर उम्मीदें 1% भी है, मैं कह रही हूँ 99%, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, ये सरकार कुछ नहीं करे, एजेंसी कुछ नहीं करे, 0.1% भी उम्मीद अगर वरुण जी है ना, तो ये गवर्नमेंट से है. और ये गवर्नमेंट अगर चली जाए, जैसे कर्नल साहब ने कही, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी. अधिकतर मैं ट्रेंड करता हुआ देखती हूँ, नो जस्टिस नो वोट. इफ नो जस्टिस नो वोट, तो वो जो महाआघाड़ी सरकार थी ना महाराष्ट्र में, जब वो सरकार आ जाएगी ना, तो हम उम्मीद भी करना हम छोड़ देंगे शायद. अभी तो हम लड़ सकते हैं. मैंने आपके लाइफ पे अभी मैं, प्रधानमंत्री जी की कोई नीति नहीं पसंद है तो मैं बोलूंगी कि ये पॉलिसी गलत है, ये नहीं, मुझे जेल नहीं होगी, मुझे जेल नहीं होगी. आई एम फ्री. मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मुझे योगी जी का कोई काम पसंद नहीं है, मैं खुला बोलूंगी कि ये काम गलत हुआ है उत्तर प्रदेश में, मुझे जेल नहीं होगी एज ए एक्टिविस्ट. लेकिन अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, आप किसी को भी वोट दीजिए, आप जिसका मन उसको वोट दीजिए, पर गो एंड वोट. डू नॉट से कि वोट नहीं देंगे, वरना आप जो थोड़ी बहुत भी उम्मीदें कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए. क्योंकि हमारे और आपके हाथ में नहीं है कि फिर हम एजेंसी से काम करवा लें या होम मंत्रालय से करा लें, या वो एनजीओ जो नेक्सस चलाती हैं, बॉलीवुड में पैसा देती हैं, फिर वो शाहीन बाग की जाके बिरयानी खाते हैं. सुशांत का केस एक नॉर्मल नहीं है, सुशांत का केस शाहीन बाग से भी लिंक्ड है ना, सुशांत का केस पाकिस्तान से भी लिंक्ड है, सुशांत का केस अंडरवर्ल्ड से भी लिंक्ड है, ड्रग माफिया से भी लिंक्ड है, नेपोटिज्म से भी लिंक्ड है. किससे किससे लड़िएगा?
मैं, आप, कर्नल साहब, प्रशांत, किससे किससे लड़ेंगे? इसलिए कृपा करके वोट दीजिए, जिसको देना है उसको दीजिए। सुशांत के लिए लड़ते रहिए। हमने वोट दिया सरकार से पूछेंगे कि भैया 3 साल हो गया, अब आप राम जी तो है नहीं कि 300 साल, 400 साल, 500 साल हम सुशांत के लिए वेट करेंगे। वो जमाने और आज जमाने में फर्क है ना। तो हम लड़ते रहेंगे, हम अपनी लड़ाई बिल्कुल कहीं से भी खत्म नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगी, हमें ये समझने की जरूरत है कि प्लीज ये केस छोटा मोटा मर्डर केस नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हैं लोग, देश के होम मिनिस्टर साहब के पीछे पड़े हैं लोग, जब शाहीन बाग में खुलेआम होम मिनिस्टर साहब का नाम लेके लोग अब्यूज करते हैं और छोटे छोटे बच्चों के मुंह से अशब्द बुलवाते हैं, तो हमें समझने की जरूरत है कि इस समय जो लड़ाई है वो सुशांत के खिलाफ नहीं है, वो देश के खिलाफ है। और देश के खिलाफ है तो सुशांत के खिलाफ तो है ही, क्योंकि सुशांत हमेशा देश, समाज, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ के बच्चे कैसे इसरो में जाएंगे, कितने ज्यादा बच्चों की मदद कर दें, शिक्षा पे किस पायदान पे हम काम करें, सुशांत ये तो करना चाहता था। जो आज गवर्नमेंट कर रही है या सोच रही है, अनुच्छेद 370 70 साल में नहीं हट पाया। कर्नल साहब तो फोर्सेस से रहे हैं, 70 साल में कोशिश ही नहीं की ना, इसलिए नहीं हटा। तो जहां इन मुद्दों पे इतने साल लगे, सुशांत के मुद्दे को हमें ये नहीं कहती कि 70 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, पेशेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा, ये मान के चलिए आप। अगर आप ये सोचते हैं कि सुशांत का केस नॉर्मल केस है, अरे वैसे तो देखिए ना, हमको पता ही है कि सत्ता में बैठा कौन सा व्यक्ति सत्ता से गिरा दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खानदान के लोग हमेशा उस राज्य में उस गद्दी पे बैठे होंगे, पर बेटा नहीं बैठेगा। मैं तो किसी का नाम नहीं ले रही, पर वो बेटा उस गद्दी पे नहीं बैठेगा। महाराष्ट्र की जनता वापस उसको कभी भी अपना राजा, अपना सरकार में बिठाने की गलती दोबारा नहीं करेगी। सुशांत का ही पावर है 2.5 साल में ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, जितनी एजेंसीज हैं सब लगा देंगे। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं जिनके पीछे आपको पता है ईडी की जांच चल रही है, रोज इनको ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। Yeah. जो ये करोड़ों रुपए की गाड़ियों से चलते हैं, बैंक बैलेंस में चलते हैं, कौन कहता है कि सुशांत का केस सॉल्व नहीं हो रहा है? सुशांत का केस अगर सॉल्व नहीं होता तो बादशाह बादशाह ही रहते, बादशाह फकीर हो गए हैं, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, वो सुशांत की देन है ना। वो केस बिल्कुल, अब केस रातों रात नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि हमें समझने की जरूरत है वरुण जी कि बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे, लेकिन बहुत स्मार्टली ये जितनी एजेंसियां हैं, ये सामने से कॉलर नहीं पकड़ के जो इसमें इन्वॉल्व है सबकी जांच करिए। तो देखिए, कोई बड़बोला जो कल सुशांत के पिता पे सवाल बोलते थे, एक बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन पे भी जांच चल रही है, उनकी पत्नी पे भी जांच चल रही है, करोड़ों का जो लेन देन किया है, जेल भी गए हैं, अभी एक बहुत बड़ी यात्रा में 2 दिन पहले शामिल भी हुए हैं। तो ये सब समझने की जरूरत है कि हम मतलब सुशांत का केस पर डे कुछ नया कर रहा है। आप ट्विटर खोलिए, आपको नया दिख जाएगा। तो सुशांत ने तो करोड़ों लोगों को मतलब हिलाया है, जगाया है कि एक 1947 में लड़ाई चल रही थी, एक लड़ाई ये, उसमें शामिल हो जाओ सारे के सारे। अगर हम वाकई चाहते हैं अपने समाज और देश को ठीक करना, तो सुशांत का केस 100% सॉल्व होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ सुशांत का केस अगर सॉल्व हो गया, आज की डेट की भारत सरकार की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल 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 सही कहा। एक चीज मैं और कोट करना चाहूंगा, दीदी सॉरी हाँ जी, दीदी ने प्लीज बड़ा अच्छा कहा। बस मैं, अगर आप सब ऐसे समझें कि अगर सिर्फ सुशांत को न्याय मिल जाता है और कुछ ऐसे 1 या 2 दोषी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है कि हाँ इन लोगों ने मारा था और देखिए आज हमने इन्हें जेल में कर दिया, आप एक बात का मतलब समझिए कि अगर कल सुशांत को न्याय मिल जाए और 2 लोग जेल में चले गए, तो क्या इससे भारत में जो भी समस्याएं हुई थी या भारत सुशांत का केस जिस जिस चीजों से कनेक्टेड है वो सब सॉल्व हो पाएगा? या फिर मैं सच बताऊं तो मुझे ही खुशी नहीं होगी, प्रीति दी को खुशी नहीं होगी, कर्नल सर को खुशी नहीं होगी, वरुण जी को खुशी नहीं होगी, किसी भी ऐसे सायरन को खुशी नहीं होगी कि किसी 2 को, ऐसे रिया को या किसी शौविक को या किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया और बाकी मुद्दे वैसे के वैसे ही रह गए। तो आज अगर इसमें समय लग रहा है तो एक एक मुद्दा कनेक्ट हो रहा है, जिया खान से लेकर के दिशा सालियान से लेकर के हर चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि ऐसा पता चलेगा कि सुशांत को तो न्याय मिला ही मिला, इससे रिलेटेड जितने नेक्सस थे उसको उस पर भी काम कर लिया गया, चाहे वो ईडी की तरफ से काम किया जा रहा हो या एनसीबी की तरफ से काम किया जा रहा हो, एनआईए की तरफ से काम किया जा रहा हो। अभी अंदरूनी काम ज्यादा चल रहा है। सुशांत की वजह से जो जो चीजें हुई हैं, आप समझिए कि इतने कम समय में इतना जल्दी न्याय मिलता भी नहीं है किसी को जितना हमें मिला है। पूरा नहीं मिला है, लेकिन जितना भी मिला है उतना भी नहीं मिलता किसी को।
कई लोगों को वर्षों लग जाते हैं रोते गाते, लेकिन 1% का भी न्याय मिल पाता। हमारे यहाँ तो देखिए बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद हो गया, बंद हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार चली गई। उसके बाद कई सारे ऐसे जो चेहरे थे, जो लेफ्टिस्ट जिनको कहते हैं, वो सब भी बाहर निकल कर आने लग गए। तो और किस तरह से आपको न्याय चाहिए? मतलब बहुत हद तक न्याय मिल रहा है, बहुत हद तक ऐसे न्याय मिल रहा है कि अब वो जिस जगह को बंद कर दिया गया, जो रास्ते थे, वो दोबारा खुल नहीं सकता। तो और वरुण, इसी एक चीज तरह ऐड न्याय करूंगी, का वेट करें। जी। एक चीज ऐड करूंगी प्रशांत भाई की बात पे। सफाई इस गंदगी की उस तरह से होना चाहिए कि अगली बार कोई सुशांत सिंह राजपूत, कोई कोई व्यक्ति किसी गांव, किसी शहर, उस नेक्सस परिवार के बाहर का कोई लड़का या लड़की जब बॉलीवुड में जाना चाहे ना, तो उसका परिवार ना डरे। तो वो इतना बड़ा काम है ये क्लीनिंग का, जो स्वच्छ बॉलीवुड अभियान चल रहा है ना, वो बहुत बड़ा काम है। और सफाई इस तरीके से ना, बिलीव मी, जिस तरीके से रोज चीजें आ रही हैं, हमने सोचा था क्या कि 30 साल तक बॉलीवुड पे जो व्यक्ति राज कर रहा है, उसको जाके कोलकाता में बोलना पड़ेगा कि हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है? मतलब जनता ने तो कमाल कर दिया, एसएसआरियंस ने कमाल कर दिया। एसएसआरियंस ने कह दिया कि ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, एजेंसीज अपना काम करेगी, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं फिर ये कह रही हूँ कि अपना काम हम करते जाएंगे। और एक आखिरी चीज कहूंगी, क्योंकि बहुत बार मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में प्लीज यूनाइटेड रहिए, प्लीज यूनाइटेड रहिए। हम सब, जब एक 5 उंगलियां अलग अलग जा रही हैं, तो 5 तरफ हमारी जो स्ट्रेंथ है वो जा रही है। लेकिन अगर मुट्ठी बनी रहेगी तो शायद हम इस केस को और मजबूती से लड़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे मैसेजेस, बहुत अच्छे कमेंट्स, एंड ये जो स्वच्छ बॉलीवुड अभियान, आई थिंक दिस शुड बी अ न्यू टैगलाइन व्हिच वी शुड पिक अप, क्योंकि ये जो क्लीन अप है, कोई कुछ भी कहे, लोग, मैं सुनता हूँ मेन स्ट्रीम पे अदरवाइज भी, दे फील दैट सुशांत डिड नॉट स्टार्ट इट, बट आई फर्मली बिलीव, एंड आई एम श्योर सारे एसएसआर वॉरियर्स ये बिलीव करते हैं कि ये जो गंदगी सफाई शुरू हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ सुशांत की वजह से ही हुई थी, और किसी की वजह से नहीं। सो on that note, on Sushant Day, on his birthday, while we share our emotions with the family, we support them completely. We also wish them all the strength, all the positivity, all the power to continue this fight till we get this entire gandagi cleaned up, till we get a closure for Sushant, his family, till we get that father to feel that he can finally say goodbye to his son as well. So on that note, thank you so much, Preeti ji, Prashant bhai, Colonel, everybody who joined. Unfortunately, due to some network issue, Mamta ji keh rahi thi she could not join, but we will do a separate session with her. ममता जी ट्रैवल कर रही हैं एक्चुअली, तो उन्होंने बहुत कोशिश की, मेरे को भी मैसेज किया, बट शी इज ट्रैवलिंग। हाँ, तो उन्होंने वही मुझे मैसेज किया था, और उन्होंने कहा कि we'll do a separate session. So we'll get her on a session, and we'll talk more about everything and anything that has to do with Sushant. And a happy Sushant Day to everyone else who is Take care. still watching. Thank you. Well done. Take care. Good night. Thank you. Jai Hind, everyone, and keep rooting for Sushant. Bye bye.